तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80 से 90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है। मैंने सिर्फ 1 साल गुटखा चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ है, अब मेरा ऑपरेशन वाला है। शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा हैं। Hi, good afternoon, everyone. This truly is a very, very memorable day for me. Of course, to work with Vidhu in his production, his film, from the time of Parinda, he's someone I've admired tremendously. So to work on a script that has been written by him and by Abhijat, it feels great. And of course, to collaborate with really the one and only Mr. Bachchan himself. I've said this over and over again in every single interview that I've ever done. One of the predominant reasons for me to want to be in the world of movies was because of your work, Amit Uncle. So it just feels it's almost dreamlike on some level to be sharing this kind of screen space with him. We've had the fortune of working, or I've had the fortune of working with him once before, but this really is a whole other level. And also, of course, one can never forget the most important person in the equation, which is the director Bijoy, who's here. So Bijoy, please do join us. I want to praise Bijoy before he speaks. I want to tell you that while we were working, come here Bijoy, come in the center, come between the two actors, you direct that. So Bijoy was, one fine day, we were working on the script and there was a cake that came to somebody's birthday and Bijoy said, sir, it's also my 1 year I've been on this year. That's when I realized that it was 1 year already. We almost spent 2 years writing with Bijoy, and I can tell you this again publicly, that the Bijoy that came 2 years back to the office, and now I see such growth, I see such wonderful growth that I am very, very proud of this young man. Thank you, Bijoy. Thank you so much.
I think I'll just add to what everybody said here. I feel absolutely honored and privileged to be in such elite company. I mean, I think every Indian filmmaker at some point wanted to work with Mr. Bachchan, and I think I'm one of those privileged few. And of course, working with Farhan, working with Vinod sir, working with Abhijat, it's literally, these are people who I've revered, I've admired their work, and I always wanted to be somewhere close to, in a position where I can at least interact with them. The fact that I got to make a film with such people is absolutely a dream come true for me. And I really hope you like the teaser, and I really hope the film turns out to everyone's expectation. Be the soldier that can defeat the king. Good afternoon, everybody. My question is to Mr. Bachchan. Mr. Bachchan here. Sir, I'm here to ask you what everyone here wants to know. Your take on the Maggie Row that's, currently making headlines. Madam, abhi tak I have not received any notice. As soon as I will get it, I will put it up to my lawyers, and we will fully cooperate with whatever the law says. I want to also add that, I stopped endorsing Maggie 2 years ago. We stopped I don't endorse Maggie anymore now. And that happened 2 years ago, so I haven't been associated with the product. Right, sir. And he's endorsing Wazir at this moment, if you don't know. All right. Thank you. Bachchan sir, you're right. Sorry. Bachchan sir, sorry. Ali from movietalkers.com. Yeah. बच्चन सर आपने लेफ्ट राइट बोल के इतना कंफ्यूज कर दिया। बच्चन साहब, आपने फरहान के साथ लक्स में एज एन एक्टर काम किया था, उसके बाद अभी आप दोनों एक साथ एक्टिंग कर रहे हो, तो फरहान एज एन एक्टर बेटर है कि डायरेक्टर बेटर है? सर, इनमें दोनों खूबियाँ हैं, और कलाकार तो हैं ही बहुत खूबसूरत और अच्छे, लेकिन कई बार इनके मन के अंदर इनका जो अंदरूनी भावनाएं हैं एज ए निर्देशक, वो कभी कभी बाहर आ जाती थी, तो और कभी कभी हम दोनों के बीच सलाह मशवरा हो जाता था। तो ये जो कहते थे उसको मैं मानता था, क्योंकि उनके अंदर एक निर्देशक है, और निर्देशक का मानना बहुत आवश्यक हो जाता है कलाकार के लिए। हेलो, सर, बहुत सारे खेल हैं जो मैं खेलना चाहता हूं और सीखना चाहता हूं। पता नहीं कि अब बढ़ती उम्र में उन्हें खेल पाऊंगा या नहीं, लेकिन मेरा प्रयत्न अभी जारी है, और जैसे ही कोई नया खेल सीख लूंगा मैं आपको बताऊंगा। विधु सर, आपके लिए एक सवाल है। विधु सर, यहाँ जी, या विधु जी। वैसे तो ये देखकर ही लग रहा है कि पॉलिटिकल बैकड्रॉप पे है पूरी फिल्म, लेकिन इतना वक्त क्यों लगा स्क्रिप्ट लिखने में? देखिए, ये सवाल का जवाब मैं और राजू पीके में भी दे चुके हैं। हमको 5 साल लगते हैं लिखने के लिए, 4-5 साल लगते हैं। इसीलिए हमारी जो फिल्म है वो एक, मेरे हिसाब से एक सर्टेन लेवल की फिल्म बन पाती है, क्योंकि जल्दबाजी में जो काम होता है, और हम कोई प्रोजेक्ट बनाते नहीं है, हमारे को कोई स्टूडियो चलाना नहीं है, हमारे पास कोई 400 लोग नहीं हैं जिनके हमको हर महीने फीस भरनी है, तो हम अच्छे से वही फिल्म बनाते हैं जिसमें हमको लगे कि ये फिल्म ज़रूर बनानी चाहिए। उसमें वक्त लगता है, और हर फिल्म आप देखिए, अगर पीके में 5 साल लगे ना, ऑलमोस्ट 5 years इट टुक अस, ये 5 साल लगे, उसके पहले भी 3 Idiots या आप परिंदा में जाइए, 40, हर फिल्म में वक्त लगा है। तो ये कोई नई बात नहीं, हम थोड़े लेजी भी हैं, आलसी हैं थोड़ा, ऐसा लगता है। बच्चन जी, आपके लेफ्ट में। बच्चन जी, यहाँ। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी 42वीं सालगिरह है। तो मैं जानना चाहूंगी कि जया जी ने आपको क्या गिफ्ट दिया, या आपने उन्हें क्या गिफ्ट दिया? मेरी सालगिरह नहीं है, आपकी शादी की सालगिरह है, 42वीं में। शादी आप शब्द इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मैं कह रहा हूं। अच्छा, क्षमा चाहूंगी सर। विवाह जयंती है आज हमारी जी, और जी सर, बधाई दे सकते हैं आप। धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन, थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो। पत्नी है नहीं मुंबई में जी, वो विदेश में है, और ठीक 12 बजे रात को हमने उनको बधाई दी। अभी यहाँ आने से पहले फिर हम फेस टाइम पे बात कर रहे थे, वो हमें बधाई कहना चाह रही थी,
लेकिन मैंने उनसे कहा कि देखिए देर हो रही है, यहाँ पर सब मीडिया इंतजार कर रहा है, मुझे जाना है, और मैं भाग आया। अब मैं वापस जाकर के फिर बात करूंगा उनसे और आपकी बात जो है उन्हें अवश्य कहूंगा। Amit ji, is that the reason that you are looking handsome today? कहाँ हो तुम? So yeah. थैंक यू with your नतमस्तक हूँ आपके सामने, बहुत बड़ी कृपा है आपकी। With your specific fashion styling, that chunni makes you look so handsome, and you give a tough competition to the youth sitting beside you. सर एक और Tell me who has एक जल्दी से एक और पिक्चर बनाइए। आपको किसने ये स्टाइलिंग करवाई सर? एक जल्दी से पिक्चर बनाइए जिसमें आजकल की जितनी नौजवान हीरोइंस हैं वो मेरे साथ हो, मेरे सामने हो, और इनका उदाहरण लीजिएगा। मैडम ये जया जी की भेंट है, लेकिन आज नहीं, बहुत पहले की। ये खास बंगाल से बनता है, बंगाल में बनता है। और जब हम अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसका नाम था पीकू, उस समय जब वो कलकत्ता आई थी तो उन्होंने मुझे खरीद के दिया था। मैडम जितने वस्त्र के बारे में आपने पूछना अभी पूछ लो, एक एक करके आप पूछेंगी तो मामला बहुत हल्का हो सकता है। घड़ी तक की बात रहने दीजिए आप प्लीज। Hello, Farhan. Hello, Farhan. Towards your left. Left. Sorry, right. आपने कहा कि बच्चन साहब एक रीज़न है आपका फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए। अगर हम बात करें कि आप उनके साथ फर्स्ट टाइम स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहे थे, तो किस तरह का प्रिपरेशन आपने खुद से की? हमने काफ़ी रीडिंग्स किए एक साथ, और उसके अलावा जो होना है वो इवेंचुअली सेट पे ही होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि पहली बार जब हम शूट कर रहे थे तो एक सीन था, ये इनके घर में, जो फिल्म में उनका घर है, उसमें हम एक सीन कर रहे थे, चेस बोर्ड बीच में है। एंड इट टुक मी अ गुड, आई वुड से ऑलमोस्ट 1 घंटा या 1.5 घंटा फॉर इट टू सिंक इन प्रॉपर्ली कि मतलब ये शूटिंग चल रही है, मैं यहाँ बैठा हूँ, अमित अंकल उस तरफ बैठे हैं, और हम लोग कुछ रीडिंग्स और रिहर्सल्स कर रहे हैं। इट टुक मी अ वेरी लॉन्ग टाइम टू डू दैट। फॉर्चुनेटली उस सीन में ज़्यादा जो टॉकी पोर्शन है वो उन्हीं का है, तो आई हैव टू जस्ट लुक वेरी ऑस्ट्रक एंड क्वाइट, तो दैट केम वेरी नेचुरली टू मी इन दैट सीन। आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट फाइनली परफॉर्म्ड सीन्स बाय द वे, completely naturally looking awestruck with this man who's giving me some very very important information. अमित सर, लेफ्ट में आपके। नहीं, हमारा पहले वर्किंग टाइटल था 2। जब हम शुरू करते हैं कोई भी कहानी, सालों साल लिखी जाती, तो हम ऐसे 1 2 3 कुछ भी उसका टाइटल रख देते हैं। फिर वो जैसे जैसे कहानी बनती है, फिर वो हमको टाइटल समझ में आता है कि इसका ये टाइटल होना चाहिए। हमारी असल में, आप मुन्ना भाई MBBS में भी कितने अलग अलग टाइटल थे। जैसे जैसे कहानी बनती है और कलाकार जो हैं उसको परफॉर्म करते हैं और हम एडिटिंग में देखते हैं क्या हो रहा है, इसीलिए हम वक्त लगाते हैं। धीमे से सहज पके सो मीठा होए वाली बात है। तो वो जब फिल्म को हमको लगता है कि अप्रोप्रिएट ये टाइटल है, तो हम फिर उसको फाइनल करते हैं। अमित सर, आपके ये पहले वर्किंग टाइटल था व्हाट अ स्क्रिप्ट, फिर उसके बाद W को सुपरस्टिशन रख के हमने वजीर। अमित सर, लेफ्ट साइड में विकास फ्रॉम न्यूज नेशन, यहाँ लेफ्ट साइड में सर, आपके लेफ्ट साइड में सर, यहाँ सर। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको सर, 42वीं शादी की सालगिरह है। और आपसे सवाल करूंगा सर, क्योंकि आपके जो बाएं साइड में बैठे हैं सर, वो शादी के साइड इफेक्ट वाले बैठे हैं, तो क्या ये सर एक लाइन होती है कि शादी का लड्डू जो खाता है वो पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता है? तो सर इन 42 सालों में ये लाइन कितनी बार याद रही है? आपकी शादी हो गई क्या? जी सर। कितना मीठा है आपका लड्डू? सर आपसे पूछना है मुझे वही। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। 42 साल नहीं हुए शादी। हम प्रजातंत्र में रहते हैं, पूछने का अधिकार हमको भी है। सारा लड्डू आप ही खा जाएंगे, हम लोग क्या खाएंगे फिर? यानी आपके लड्डू मीठे हैं, नहीं बोल दीजिए। जी सर, बिल्कुल। मेरे भी बहुत मीठे हैं सर। अनुभव थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि आपने ट्विटर पे बहुत सारी बात शेयर की हैं, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी सर अनुभव कैसा था ये पूरा 42 साल का अनुभव? 42 साल विवाह का अनुभव, इसको कौन लाया यार इधर? सर ये बहुत लंबी बात हो जाएगी। थैंक यू सर। My question is to Bijoy. Here.
Hi. Hi. It's been reported that John and Neil Nitin play cameos in the movie, and is that true? Well, you just saw them. Exactly, and I yeah. was quite surprised that you have, kind of shown them. Well, they both play kind of pivotal roles in the film. I wouldn't want to discuss much about that because the film is, going to be releasing much later. So I would kind of wait to kind of watch out kind of thing. But they both definitely have it's a special appearance, but still they both have quite a pivotal role in the film. Farhan or your state? Since you've done action movies, but you've not done an out-and-out action movie like you're doing action in this movie. So we also heard that there were professional hires to make you learn how to hold gun and all. So if you can share your experience on that. There was a very good action team, for sure. और हाँ, मैंने एक्शन काफ़ी डायरेक्ट की है, मगर मैंने कभी खुद फिल्म में एक्शन की नहीं है. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि वन ऑफ माय फेवरेट जॉनर्स फ्रॉम द टाइम दैट आई वाज अ चाइल्ड वाज एक्शन मूवीज. और मैं मतलब घर में घुमा करता था विद एन इमेजिनरी गन, and I used to go around corners thinking that there are villains hiding in different places. I was a very filmy child, as you can imagine. तो मैं सब करता था. और एक दिन मैं अपने मम्मी के रूम की तरफ जा रहा था, दरवाज़ा बंद था और मेरे माइंड में ये चल रहा था कि मैं दरवाज़ा खोलूंगा, उसके पीछे एक विलन का हेंचमैन टाइप खड़ा होगा और मैं उसे सॉक करूंगा मुंह पे. और मैंने दरवाज़ा खोला और जोया वाज कमिंग आउट एंड आई पंच जोया इन द फेस. तो उसके बाद आई मूव टू रोमांटिक कॉमेडीज फॉर अ बिट, बट आई ऑलवेज एंजॉयड एक्शन. हाँ, और एक बहुत ही प्रोफेशनल टीम थी वहाँ पर जिन्होंने मुझे सिखाया बेसिक्स ऑफ एक्शन. बट आई थिंक या एंड आई हैड अ वंडरफुल टाइम डूइंग इट क्योंकि मुझे पहले कभी मौका फिल्म मिला नहीं था एक्शन करने के लिए. मैं आपको अपना एडिटिंग में अनुभव बताऊंगा क्योंकि मैं एज इट इज मेरी जनरल नॉलेज बहुत कम है. तो जब ये फिल्म फर्स्ट हाफ राहुल नंदा जिन्होंने पोस्टर बनाया है उन्होंने देखी, हम एडिट में, और प्रभात यहाँ बैठे हैं, तो इन्होंने कहा कि ये क्या फर्स्ट टाइम इसने एक्शन हीरो किया है फरहान ने. तो आई कुडंट बिलीव इट. एक्चुअली आई कॉल्ड फरहान. आई स्टिल कांट बिलीव कि दिस इज हिज फर्स्ट टाइम एक्शन परफॉर्मेंस बिकॉज ही इज सो गुड with his gun and with his movement, his body language, that he looks like as if, he is an action hero. So my compliments to him. Maybe वो जो शॉक मारा था जोया को वो help कर गया, लेकिन he has done a great job. Amit sir, you're on your left. You're. Okay. Recently, Deepika gave an interview saying that it was a mistake of her not calling you at the success bash, and she also said कि उन्होंने आपको बहुत टेक्स्ट और मैसेज किया. तो क्या मान ले कि आपने उनको फाइनली माफ कर दिया? अरे मैडम छोड़ दीजिए, जो बीत गई सो बात गई, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए. एक कविता सुना देता हूं मैं बाबूजी की इस पर. प्लीज सुनाइए सर, प्लीज. जो बीत गई सो बात गई. जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था. वो डूब गया तो डूब गया. अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे. जो छूट गए फिर कहां मिले, पर पूछो टूटे तारों का कब अंबर शोक मनाता है. जो बीत गई सो बात गई. वाह. हाँ, वक्त मिलता है इतना हम लोगों के पास कि आप सबके जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसके लिए हम उसका उत्तर दें. विदु सर, ज्यादा पूछेंगे तो एक और कविता सुना देंगे आपको. पूछिए प्लीज. प्लीज. विदु जी, एक सवाल आपके लिए. ये इधर भाव जी. विजय बहुत अच्छे उम्दा डायरेक्टर है, लेकिन इस तरह का जो सब्जेक्ट है ये आपकी खासियत रही है. तो आपने क्यों नहीं ये डायरेक्ट करना चाहा जब इतना लिखने में वक्त लगाया? तो क्योंकि मैं ऑनेस्टली समझता हूं कि विजय ने मेरे से बेटर डायरेक्ट की है. उसने बहुत अच्छी डायरेक्ट की है फिल्म, और मैं राजू के साथ काम कर करके थोड़ा लेजी हो गया हूं. मैं चाहता हूं ये लोग जाके डायरेक्ट करें, मैं एडिटिंग रूम में बैठ के भाषण झाड़ूं. तो मेरा रोल बिल्कुल अच्छा चल रहा है. पर सच अगर हम माने तो देयर आर फ्यू सीन्स दैट आई हैव सीन इन द फिल्म that I couldn't have done half as good as Bijoy. My compliments to him one more time, really. Bijoy, here, right here, on your right. Yeah. Hi, Bijoy. I would like to know. You have stalwarts like Mr. Bachchan working on this film, and Farhan himself is an accomplished director. Vidhu is a fantastic director. What were your challenges of directing a film like this with a cast?
which is so accomplished in their own way? And was it intimidating for you as a young filmmaker in the beginning? And how did you handle the situation? I had to completely block that feeling out because, like you said, all of them are like so accomplished in their own way, and it is definitely very daunting and intimidating to work with such people like that. But so I had to keep that out completely, and the fact that we actually prepped for the film for a long time. We had a lot of readings, so in that process itself, they just made me feel so they didn't, at no point did they ever make me feel that, okay, this is like a filmmaker who's just making his third film. Nothing like that. I mean, all of them, treated me the same way that they would like any other director. So, and I really appreciate that. And having said that, like I said, I had to keep that out completely. I had to forget the fact that I'm directing Mr. Bachchan, and forget the fact that I'm directing another director that is Farhan here, right here. So because ultimately I just had to make the characters work. I had to do justice to the script that Mr. Chopra and Abhijat had written for years. I mean, my biggest challenge for me was that that it should definitely raise the bar in terms of how they saw the film, and I wanted to make sure that I gave them a good film. Mr. Bachchan, पीछे सवाल थोड़ा यहाँ से थोड़ा वजीर से थोड़ा अलग है, सब पीछे, एकदम पीछे हैं सर। सर आज सुबह से ही खबरें पीछे सर, आपके पीछे नहीं, कैमरास के पीछे। सर आज सुबह ही खबरें आई हैं कि बोफोर्स मामले में आपके बयान जो हैं वो उसको लेकर खबरें आई हैं, क्या कहना चाहेंगे सर उसके बारे में? कहाँ हैं आप पहले तो ये सर बताइए। ये पीछे, ये सर। क्या मैंने सुना नहीं, क्या पूछा आपने? सर बोफोर्स मामले में जो आपका बयान था, मेरा क्या बयान था? सर यही कि आप अपने पिता के घर पर थे, जगदीश टाइटलर कहाँ थे वो आपको पता नहीं था, तो सर उसको लेकर जो बयान आया है आपका दिया गया। मैंने समझ नहीं आ रहा क्या कहा आपने, हमने देखा नहीं उसको अभी तक, क्षमा चाहता हूँ, बताइए क्या था बयान? हाँ सर, न्यूज़ में इस तरह की खबरें हैं सुबह से कि जो आपकी जो कॉपी जो सीबीआई के पास आपने सबमिट किया है, जो बयान सबमिट किया है वो फाइनली दे दिया गया है, जिसमें कि आपने कहा था कि उस वक्त आप पिता के घर पर थे और जगदीश टाइटलर कहाँ थे इसकी आपको जानकारी नहीं है। ये बोफोर्स के मामले में है? हाँ जी सर। मैं अपने पिता के घर पे था। 84 राइट्स, आई एम सॉरी, 84 राइट्स सर। हाँ नहीं, मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। 84 राइट्स की बात। बहुत सारे ऐसे बयान आ रहे हैं। उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ थे, तो मैंने कहा मैं अपने बाबूजी के घर पे था। मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं। अब पता नहीं कौन से बयान की बात कर रही हैं। हाँ, वो लोग आए थे मुझसे पूछने कि आप कहाँ थे और ये बाकी लोग कौन थे आपके इर्द गिर्द। मैंने बताया मुझको याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है, जितना मुझको याद था मैंने बता दिया उनको। अब वही दिलवाएंगे। हमारे में तो इतने औकात है नहीं। और जिस संबंध में हमने वो बात की थी वो अलग था। I just consider myself very fortunate to be still getting some work, and very fortunate to have the opportunity to work with this new generation, whom I find unbelievably talented, very progressive in their thought and thinking, and it's a great joy. The average age on my sets is about 25, 30 years, and I'm 73, so I just wonder whether, this is my position or place or not, but it's just a wonderful experience. I'm very fortunate, really, to be still getting some work, and I would like to continue working, yes. Sorry? Well, that's for you to say and for me to keep quiet on. आपके पास फुर्सत है क्या? मैडम, आप बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चंस पूछ रही हैं सुबह से। अभी तक तो आप मेरे वस्त्र के ऊपर पीछे पड़ी हुई थी, अब हमारी कुंडली ऊपर आ गई हैं आप।
क्या मालूम किसने क्या लिखा है, और जिसने लिखा होगा उनसे जाके पूछिए आप। राजू सर। Who are you talking to? Farhan. Yeah. In excuse me, in my personal opinion, no, I don't think that they are. Everyone, when we sign up a contract with any company, there is a certain clause or clauses within that contract in which the company assures you that all the research that they have done, all the information that is out in public domain is accurate information, is based on fact. They are not lying to the public. They're not lying about nutritional values. They're not lying about the contents of what goes into the making of anything. And this is all backed by research that they have done. And you have to believe them, because we are not scientists to say that we'll take it to a lab and test it ourselves. We won't know what to do with it. Like, for example, I mean, just taking what's happening with Maggie right now. Maybe a year and a half ago, if somebody told you there's something wrong with Maggie, you wouldn't believe it. You know what I mean? The fact is, everyone thought it was well, everyone was eating it, people were selling it, and you trusted the brand. Similarly, we trust the people when they give us certain information. We have to trust them because they know better than us. And then you are indemnified by them that tomorrow if there's anything, of course, as consumers, you can take up a case against them if there is a problem. You can. But you cannot hold the person who was endorsing that brand responsible, because then when you show that advertisement on your channel, are you responsible for bringing it out to the people? Is a shopkeeper that's selling it to someone responsible? Where does it end? You know, there is no end to it. And of course, I completely agree with you that ambassadors, people have to be responsible towards what they are signing up for. That I can appreciate, that you don't want to sign up for something that already is dubious, you know, that may have dubious claims. I can understand, but these are brands that you've trusted for years and years and years. You know, so to say that, oh, I can't sign on with a brand that people have trusted for the last 2 decades, I mean, I don't know how that would be possible. आपका सुना ही नहीं दे रहा, किसको पूछ रही? Sorry, मुझे पूछ रही हैं कि बच्चन साहब को पूछ रही? हाँ जी. Yeah. My matter is now sub judice, so I won't be able to say anything. But all I can say is that as soon as I get the notice, my lawyers will look through it. We will follow the law of the land, and they shall have my fullest cooperation in it. I have one thing to add, because and that should end this Maggie discussion, is that I personally agree with what Farhan said, but there's one thing he didn't say which I am saying, that there's also something like in our country, there's a quality control, there's an ISI, there is whole government machinery that has to check the quality of the product that people are consuming. I think we should also question that agency. It's their job to protect us also. With that, let's put a full stop to Maggie and go to Wazir. Hi, Bijoy. Hi, Bijoy. Hi, Bijoy. Yeah. हाँ. Hi. अरे वो बिजॉय कर रही हैं आप, एक मिनट. कोई बिजॉय, मिस्टर बिजॉय कर रहा था. कहाँ गए? पूछ लीजिए सवाल, टाइम में यही है. ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें 3 बड़े-बड़े डायरेक्टर्स हैं जो इस प्रोजेक्ट के, चाहे वो एक्टर हो, राइटर हो या फिर एडिटर हो. कहीं आपको ऐसा लगा कि इंटरफेरेंस था इन तीनों का? अगर ऐसा मैं सोचता तो फिर मैं यहाँ पे नहीं होता. I think it has been, I mean, it's been a great learning curve for me as a filmmaker, because the first time I'm working on someone else's script, and it's been a great collaborative effort so far, and I'm enjoying this process. It's been something, like I said, these are filmmakers. I mean, Mr. Chopra and Bachchan sir and Farhan, these are people like I really, I love their work. So the very fact that I got an opportunity to kind of interact with them, work with them on a project, itself is a great privilege. So I only look at it as a part of a learning curve. Mr. Bachchan, आपसे सवाल है मेरा. यहाँ आपके here. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 21st योगा डे के लिए आपको इनवाइट किया है और शिल्पा शेट्टी को, तो क्या आप जाएंगे दिल्ली? और योगा के लिए मायने क्या हैं आपके? क्या आप योगा करते हैं? लोगों को कैसे इंस्पायर करेंगे, कुछ बताएंगे आप?
जी, मैंने अभी तक वो निमंत्रण देखा नहीं है। जो निमंत्रण मेरे पास आया है वो NFDC से आया है और उन्होंने कहा है कि ऐसे एक योगा दिवस जो है वो सरकार की तरफ से मनाया जा रहा है और क्या आप एक वीडियो बाइट दे सकते हैं। और जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होगी मैं जा कर के वो वीडियो बाइट देने वाला हूँ, केवल बताने के लिए कि ये योगा दिवस है और योगा से कैसे स्वास्थ्य और शरीर को फ़ायदा हो सकता है। और हाँ, मैं सुबह सुबह थोड़ा बहुत प्राणायाम वगैरह कर लेता हूँ। हेलो, जी, ये Yeah, I was going to thank you very much. Honestly, thank you because First person who asked हाँ, about the पहला film. शुक्र है आप वजीर पे आए हैं, बड़ी मेहरबानी है आप। नहीं तो पता नहीं हम योगा और कपड़े और घड़ियों और कुर्ते और पजामे से कहाँ कहाँ जाने वाले थे। थैंक यू सो मच। कहानी के अंतर्गत ऐसी एक अवस्था आ जाती है जहाँ मेरी टांगें नहीं हैं और पूरी फिल्म में मुझे जितना भी काम मिला है वो कुर्सी के ऊपर, एक व्हीलचेयर के ऊपर। दोनों मेरी टांगें गायब हैं। जब भी मैंने विनोद के साथ काम किया है उनमें एक खासियत रहती है कि वो बहुत बारीकी से हर एक पहलू को, हर एक विषय को लेते हैं और जब तक उनको संतुष्टि नहीं होती तब तक वो लगे रहते हैं उसमें। तो जब ये कुर्सी की बात आई तो मुझे लगा ठीक है, व्हीलचेयर है, उस पर जाके बैठ जाएंगे और काम करेंगे। लेकिन 3-4 महीने पहले से ये तरह तरह के विभिन्न प्रकार की कुर्सियां जो हैं वो मेरे सामने प्रकट करते थे और कहते थे इस पे बैठो, इसको आगे चलाओ, पीछे चलाओ, दाईं तरफ लो, बाईं तरफ लो, घूम जाओ। बहुत सारा इसमें उन्होंने अपना समय बिताया और अंत में जाकर के एक कुर्सी चुनी गई जिसे आप देखेंगे फिल्म में। क्योंकि हमारी टांगें हैं भाग्यवश, इसलिए बहुत सारा विजुअल VFX कहते हैं शायद उसे, या उसके ज़रिए उसको छिपाना पड़ता है। और तरकीब ये होती है कि यहाँ से यहाँ तक एक काला मोज़ा पहनना पड़ता है, उसके ऊपर ऐसे सफ़ेद रंग के क्रॉसेस बने होते हैं जो कि VFX वाले उसे देखते हैं। यहाँ पर पजामा जो या पैंट हो उसकी गांठ बांध देते हैं ताकि लगे कि ये एक स्टंप है और उसके बाद वो VFX में यहाँ से यहाँ तक का जितना पोर्शन है वो गायब कर देते हैं। शूटिंग के दौरान मुझे तो वैसे ही करना पड़ा। तो हमारे एक बहुत ही सक्रिय असिस्टेंट हैं, कहाँ गए, ये हर्षित, इनका काम था कि मेरे दोनों टांगों को वो बांध के रखें। क्योंकि क्या है कि अगर ये टुंडा है एक तरह से, ये हिलना नहीं चाहिए और आमतौर पर जिसके पूरे पाँव होते हैं ना, वो जब बात करते हैं या चलते हैं या कुर्सी भी चलाते हैं तो ये इसका जोर लग जाता है ताकि ये ना हिले, क्योंकि अगर ये हिलेगा तो टुंडा भी हिलेगा और वो अपने आप नहीं हिल सकता है जो कटा हुआ पाँव है। तो इनकी ये नौकरी लगी हुई थी कि हमारा पाँव जो है वो बांध देते थे। इस तरह हमने उसमें काम किया। कई ऐसे दृश्य थे जहाँ पर मुझे लेट करके काम करना था या फिल्माना था, तो उसमें एक अलग तरह का पलंग बनता था जिसमें अगर मैं बिस्तर पे यूं बैठा हूँ बिस्तर के ऊपर, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा छेद कर दिया जाता था जिसके अंदर मेरी टांग चली जाती थी और ऊपर से फिर कंबल रजाई वगैरह ओढ़ लेते थे। इस तरह करके हमें काम करना पड़ा। मेरा सवाल है राजकुमार हिरानी से, जाकिर सिसोदिया फरमा। एक मैं इनको बता दूं ये कि हमारा जो पहला शेड्यूल था 10 दिन का वो हमने कैंसिल किया और फिर मैं ये कहूँगा कि सब लोग बैठ के रिहर्सल एक टेबल पे, पहले दिन तो हमने होटल में की, दूसरे दिन से अमित जी ने अपने घर में बुला लिया, तो हम सब लोग इनके घर में एक हफ्ता बैठे रहे अक्रॉस द टेबल, फरहान, मैं, विजय, सब लोग, और पूरी फिल्म की रीडिंग हुई। और ये जो कुर्सी की बात कर रहे हैं वो इसलिए था कि जब पहली बार ये फिल्म में एक्टिंग करें तो ये कुर्सी ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये लगे कि बरसों से हैं। इसके लिए ये एक्चुअली 3 महीने तक वो कुर्सियाँ इनके घर पे रही और ये ऐसे उस पर बैठ के बहुत ये ह्यूमिलिटी से बात करते हैं। मैं इनकी तारीफ करना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली इन्होंने 2-3 महीने उसको ऐसे चलाया कि जब फिल्म में आप देखेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि कोई कलाकार उसको चला रहा है, ऐसा लगेगा कि जो किरदार है वही उस कुर्सी पे बैठा है और वो चला रहा है। ताली बज रही, जोर से बजाइए। Raju sir, on your right. Hi. Now that you're done with PK and PK has been appreciated a lot in China, what next? What's happening on Sanjay Dutt's biopic?
Actually, before I answer that, let me also say one thing publicly, since everybody's been saying many things publicly. This is actually the first time I'm sitting with Mr. Bachchan. We've done many press conferences here, but I want to say I've grown up, completely grown up trying to be like him when I was in school, would speak like him, would go to a particular tailor to make shirts, the kind of shirts he used to wear. Speak like him. Mom used to get very irritated because I was, hey, I would constantly be doing that. And I've also grown up on Babuji's poems. So whenever he says that, I cannot tell the joy I actually get. अभी उन्होंने शुरू किया, मुझे लग रहा था और लोग सवाल पूछें तो 2-4 और कविताएं सुनने को मिल जाएं. एक बार उन्होंने आके घर पे काफ़ी अरसा बिताया था और कई कविताएं सुनाई थी जो that's a precious possession I still have, and there's a recording I have and I keep playing it once a month at night alone and keep hearing those poems. So it's a complete joy to be here. I say it with all my heart actually. It's a complete joy to be sitting here. And दूसरे सवाल का जवाब बहुत जो आपने सवाल पूछा था ये है कि संजू के बायो पे काम हो रहा है, स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और अगले साल उसे हम शुरू करेंगे. Now that you shared such a lovely incident about Amitabh ji, any plans of working with him in future or you plan? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है. देवी जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. अमित सर, आपके सामने विकास फ्रॉम न्यूज़ नेशन. सबसे पहले तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं सर आप सभी को. और हर साल सर हम लोग देखते हैं जब भी मूवी आपकी आती है कुछ अलग हम लोगों को दिखाई देता है. इतने वर्ष बीत गए सर, इतने साल बीत गए, कितना चैलेंजिंग जॉब जो है सर, जो अब खुद जब पर्दे पर देखते हैं अपनी फिल्म को, कौन सा ऐसा लगता है सर इन गए वर्षों में कि सबसे चैलेंजिंग अभी तक का जो किरदार आपने निभाया है स्क्रीन पर, वो कौन सा होगा सर? सभी चैलेंजिंग है हमारे लिए. सर सबसे एक होता है सबसे तुरंत जहन में जो आता है, अंतर नहीं कर सकता मैं इस फिल्म को लेकर अगर बात करें तो सर, क्योंकि इसमें तो बिल्कुल अलग ही इस तरीके का शायद पहले हम लोगों ने देखा नहीं. जब कलाकार हमारी उम्र तक पहुंचता है तो इसी तरह के रोल मिलते हैं. अब इनकी तरह तो मिलेगा नहीं, तो जो मिलता है उसको स्वीकार कर लेते हैं. हेलो, इनकी एक बात इन्होंने कही नहीं जो मैं कहना चाहूंगा कि ये फिल्म में इनकी लेग्स नहीं है, तो इन्होंने सारी फिल्म में वो बिल्कुल हिलने नहीं दिया लेग्स को. बहुत तकलीफ से गुजरे हैं ये, इसके लिए आपका जो सवाल था वो इनको थोड़ा लगा कि मगर बहुत मुश्किल से ये गुजरे टू एक्चुअली परफॉर्म. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म अ पर्सन हु हैज नो लेग्स और आपकी हैं लेग्स और आप प्रिटेंड कर रहे हैं या एक्ट कर रहे हैं कि है नहीं. एंड व्हेन यू विल सी द फिल्म यू विल सी व्हाट एन इनक्रेडिबल जॉब ही हैज डन. थैंक यू अगेन सर. हेलो, ओवर हियर. अमित जी, स्ट्रेट राइट. पूछ रहे थे आप, कुछ पूछ रहे थे. अमित जी, सवाल ये है कि आप फिल्म देख चुके हैं आप, तो मैं जानना चाहूँगा कि जरा कुछ विस्तार से बताएंगे कि फिल्म कैसी होगी और जो फरहान अख्तर हैं, अदिति राव हैदरी हैं, उनका काम कैसा लगा पर्दे पर देख के आपको, और आपके कुछ किरदार के बारे में अगर आप हमें बता सकें. जी, जैसा कि विनोद ने अभी कहा, मेरा किरदार है एक कश्मीरी पंडित जो कि दिल्ली में रह रहा है. उनका नाम है ओमकार नाथ धर. और किन्हीं परिस्थितियों की वजह से, एक दुर्घटना की वजह से उनकी टांगें कट जाती हैं और इनकी मुलाकात होती है, या कहा जाए कि ये दो ऐसे शख्स हैं इस फिल्म में जिनकी जो परिस्थितियां वो एक जैसी हैं और किस तरह ये दोनों शख्स मिलते हैं, लेकिन जो वो समाधान ढूंढ रहे हैं और जो मैं समाधान ढूंढ रहा हूँ वो एक है, और किस तरह ये दोनों मिल करके उस चरम सीमा तक पहुंचते हैं, ये कहानी है हमारी. अमित जी, कल जया जी ने भी फिल्म देखी, तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि उनकी तरफ से क्या रिएक्शन था, क्योंकि आजकल उन्हें कोई फिल्में जल्दी पसंद नहीं आती हैं, तो आप कुछ नहीं, फिर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा भाई साहब. कल जया जी ने भी कल ये फिल्म देखी. हाँ जी. आप से कुछ बातें हुई या उनका कुछ रिएक्शन था? भाई साहब, मेरी पत्नी है, बातचीत तो होगी ही. फिल्म के बारे में कुछ बातें हुई, वजीर फिल्म के बारे में कहना क्या चाह रहे हैं? आपका किरदार उनको कैसा लगा, क्योंकि आजकल उन्हें कोई फिल्में पसंद नहीं आती है जल्दी. जी, वो एक बार नहीं, वो 2 बार देखने गई है. हेलो, ये बात वैसे मैं आपको अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ. जब वो पहली बार देखने गई तो हम लोग घबरा रहे थे, जब वो दूसरी बार देखने गई तो हम लोग शैंपेन पी रहे थे. ऐसा हुआ नहीं है कि 3 दिन में उन्होंने 2 बार फिल्म देखी हो. अमित जी,
विधु विनोद चोपड़ा जी से आपका बहुत लंबा एसोसिएशन रहा है, तो वो एज अ प्रोड्यूसर आपको ज्यादा भाई, डायरेक्टर या फिर राइटर? पहले तो ये हमारे मित्र बने और उसके बाद जब ये इंस्टीट्यूट से निकले थे तो इन्होंने एक फिल्म बनाई थी, उस समय इन्होंने मुझे दिखाई और मैंने इनसे कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहूँगा। 40-45 वर्ष लग गए, उसके बाद इन्होंने मुझे काम दिया है। और एज ए प्रोड्यूसर, एक निर्देशक और निर्माता के तौर से तो इनकी खूबियाँ आपके सामने हैं, कई इनकी फिल्में आपने देखी हुई हैं। लेकिन इनके साथ जब मैं पहली बार काम करने जा रहा था तो इनके साथ एक महिला थी जिन्होंने काम किया हुआ था फिल्म में, अभिनेत्री। उन्होंने कहा आप इनके साथ काम करने जा रहे हैं। एक्चुअली 2 महिलाएं थी जिन्होंने मुझे चेतावनी दी। एक महिला ने कहा कि आप जा रहे हैं वहाँ काम करने इनके साथ, इससे बेहतर प्रोड्यूसर आपको नहीं मिलेगा। वो आपकी इतनी देखरेख करेंगे, इतना ख्याल रखेंगे आपका। और दूसरी महिला ने कहा कि आप जा रहे हैं, कब जा रहे हैं आप? मैंने कहा जी मैं कल जा रहा हूँ। ठीक है, परसों आपसे मैं वापस मिलूंगी क्योंकि आप परसों वापस आ जाएंगे। ये मत पूछिए कि वो महिलाएं कौन हैं। Hi, I am from the Bus Diary. मुझे अब भी याद है जब पहली बार ये आए तो सूटकेस 2 ही थे, तो मैंने इनको बोला सर 1-2 महीने की शूटिंग है। कहते नहीं भैया, मुझे तो बोला कि हफ्ते भर में वापस चला जाऊंगा, बाकी सामान अगले हफ्ते आएगा। Hi, I am from the Bus Diary. To your left. अमित जी, आपसे एक सवाल पूछना था, आपके लेफ्ट में। You have worked with all the actors from the Angry Young Man time to today, from Shah Rukh Khan to Farhan. आमिर खान के साथ काम नहीं किया, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? विनोद चोपड़ा फिल्म्स है, आप दोनों को साथ कब लाएंगे? ये बताएं हमको क्या? सर से भी सवाल है। हम बताएंगे, जब वक्त आएगा तो जरूर बताएंगे। एक लंबू जी टिंगू जी हो जाएगा फिर से। यानी 45 साल में आपको सिर्फ लंबू जी टिंगू जी याद रहा है? अरे आपकी पुरानी फिल्में सारी याद है, वही तो। Hi, this is Sohail from Glamsham. It was your right. A very happy new year to all of you all. साल की सबसे पहली फिल्म और सबसे बड़ी फिल्म कही जा सकती है, उसके लिए थोड़ा प्रेशर है एक्चुअली कि people are looking forward. And what was the reason to show like a large portion of the film actually? You know, what was it? देखिए आजकल क्या है कि जो फिल्म मार्केटिंग हो गई है वो मॉल में जाके नाचना, अलग अलग शोज पे जाके नाचना हो गई है। क्योंकि अगर आप नाचेंगे नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चलता आपकी फिल्म रिलीज हो रही है। अब हम जहां से हैं हमको ये बहुत अजीब लगता है कि हम बच्चन साहब से कहेंगे भैया मॉल में जाके नाच लो, हमसे नहीं होता। तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि जो हमारा काम है वो हम दिखा रहे हैं आपको। कल हम पहली बार, शायद ऐसा होता नहीं इंडस्ट्री में, कि जो प्रोग्रामर्स हैं 60-70 जो पूरे हिंदुस्तान में सिनेमा चलाते हैं, उनको हमने कहा ये आप देख लीजिए फिल्म। तो कुछ लोग तो अचंभे में आके पूछ रहे कितने मिनट दिखा रहे हैं। हम बोले सर हम पूरी फिल्म दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए, अच्छी लगेगी तो बहुत अच्छा है, नहीं लगेगी तो भी हमने तो अपनी पूरी मेहनत की है। तो हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम और तो कुछ कर नहीं पा रहे ना दोस्त। तो ये बेहतर है कि हम अपना काम आपके सामने रखें। जितने लोग इंटरव्यू करने आए हैं हमारे ऑफिस में, फरहान को, अमित जी को, अदिति को, बिजॉय को, सबको हमने पहले बोला 15 मिनट फिल्म देखिए, 20 मिनट, तो आपको पता तो चले कि फिल्म है क्या। तो ये सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप उसके बारे में बोलें आगे जाकर। सर ये एक साइन है कि लाइक यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द फिल्म आल्सो इन फैक्ट। सर वो तो हम मुन्ना भाई हैं, पैदा ही हुए हैं तब फुल कॉन्फिडेंस में ही चलते हैं। Hi sir, Vidhu sir over here towards your left. So you know, with just 7 days left for the release, what sort of release are you planning to give to the film in India and overseas as far as the screen count and everything is concerned? Can you say that again? Yeah. We are looking at, actually Reliance that's releasing the film does that more than me. I am a producer who is more creative producer than actually looking at how much. I mean, I still don't know how much money we made in China on PK. I was asking somebody, yaar, kitne paise bane? So that actually Reliance will be able to answer, but it's a pretty big release. Thank you, sir. फरहान जी यहाँ पर मेरा क्वेश्चन आपसे है। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। सर अमित जी से आप जब यू आर डूइंग दिस मूवी, तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? जैसे अमित जी का डायलॉग था दीवार में, मेरे पास माँ है, तो क्या आपका डायलॉग होगा कि शुरुआत नई साल की, मेरे साथ अमिताभ जी हैं?
मेरा ये मानना है कि इनके फिल्म इंडस्ट्री के आने के बाद जितने भी लोग आए हैं उन सब ने बहुत ने ज़्यादा हद तक, कुछ ने कम हद तक, जो भी हो, प्रेरणा ली है इनसे, इंस्पिरेशन ली है इनसे, इनकी वजह से ये सोचा है कि मुझे भी फिल्मों में काम करना है, कुछ ढंग का काम करना है, ये सारी चीज़ें हैं. आई एम वन ऑफ दैट जनरेशन, आई थिंक ऑल ऑफ अस आर. सो टू बी वर्किंग विथ हिम, इनके साथ काम करना इज़ रियली अ ब्लेसिंग. You know, apart from the fact that I have great admiration for his work and love for him as a person, just to see him working up close and personal, to be able to share that experience, something that he loves doing, which is acting in films, to be in films is something I love doing too. So to be able to share that with somebody who you've admired all your life is a very, very special. और अगर एक किरदार का नाम ओमकारनाथ धर है, मैं भी कश्मीर से हूँ, तो जरूरी नहीं है कि हर किरदार के नाम से ही वो पॉलिटिसाइज हो जाए. कुछ लोगों का नाम होता है यार, पंडित होते हैं, ओमकारनाथ धर उनकी लेग नहीं होती, एक्सीडेंट में हो जाता है. तो ये इट्स लाइक ही सेड, इट्स अ स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स एंड उनकी जिंदगी पे क्या गुजरता है. क्या आपको लगता है कि ये ऑस्कर की नेक्स्ट एंट्री होगी? फिल्म ऑस्कर्स के लिए ये नेक्स्ट एंट्री होगी? देखिए, मैं आपको एक बात क्लियरली बताना चाह रहा हूँ. जब मुझे कोई पीके में कहता था कि 300 करोड़ करेंगे, 400 करेंगे, मैं बिल्कुल उस बात में बिल्कुल विश्वास नहीं करता. मैं किस बात में विश्वास करता हूं कि हमने ये फिल्म 1 साल एडिट की है. हमने पीके जून से 6 महीना डिले कर दी थी फिल्म, क्योंकि हमको लगा कि इस पे और काम है. हम आपको एक बात बता सकते हैं कि ऐसी फिल्म इस जॉनर में आपने नहीं देखी होगी. ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं. ये कहां जाएगी, क्या होगा, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है. हमारा सिर्फ एक ही काम है और सबका यह कि हम आपको अपना बेस्ट काम करके दिखाएं, जो हमने कर दिया. उसके बाद वो आपको अच्छा लगे, ऑस्कर में जाए, मून के ऊपर कल को चले और नहीं चले, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है. वैन गॉग जैसे पेंटर की एक पेंटिंग जिंदगी भर नहीं बिकी थी. जब मुझे लोग बोलते हैं हिट एंड फ्लॉप, मैं यही सोचता हूं. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर्स, उनकी एक पेंटिंग नहीं बिकी. तो क्या मालूम कि वैन गॉग ग्रेट पेंटर नहीं थे? तो ये जो एप्रिसिएशन आपकी जो है उसका हमको बहुत ये है. लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम नन ऑफ अस आर सिटिंग हियर थिंकिंग अब हमको ये, वो हमारे जहन में है ही नहीं बात. धन्यवाद. बच्चन सर, शिवांगी हियर फ्रॉम लाइव इंडिया. मेरा सवाल आपसे है कि हाल ही में एक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने बॉलीवुड की एक बड़ी अभिनेत्री आशा पारेख जी पे ये इल्जाम लगाया है कि उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था और वो पद्म भूषण अवार्ड के लिए उनके घर 12 माले सीढ़ियां चढ़कर गई थी, जो उन्हें बहुत खराब लगा था. तो इस पर आप इंडस्ट्री से हैं सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपने उनके साथ भी काम किया है सर. आशा पारेख जी गई जी, आशा पारेख जी लिफ्ट बंद था और वो 12 माले सीढ़ियां चढ़कर गई थी उनसे ये कहने कि पद्मश्री नहीं, मुझे पद्म भूषण मिलना चाहिए जी. तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से छवि खराब करने के लिए इस तरह मुझे लगता है कि वो सीढ़ियां चढ़ के गई और लिफ्ट में नहीं गई, और क्या सर, इस तरह से अवार्ड को लेकर अगर कोई नेता किसी बड़े आर्टिस्ट पे आरोप लगाता है तो आपको लगता है कि ये इस तरह की बयानबाजी होनी चाहिए? पूछिए, और जिन्होंने दरखास्त की उनसे पूछिए, हमसे क्या पूछ रहे हैं? You know, please, you know what you do when you ask questions like that, you actually demote the beauty of this press conference to something else. So please don't do it. Thank you very much. I think जहाँ तक हिंदी फिल्मों का ताल्लुक है, I would call this in the wholesome genre, is what I would call it. अभिजात आपके दाहिनी ओर, प्रशांत पांडे, ईटीवी नेटवर्क से. ये फिल्म कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बैकड्रॉप को भी एक तरह से छूती है. हाल फिलहाल पठानकोट में भी हमने देखा एक तरह का इंसिडेंट. जब फिल्म 40 वर्षों का सफर तय करती है और एक फिल्म इंग्लिश में बनी है, तो क्या कोई ऐसी घटना जो लेखक के बतौर आपके जहन में चिपक कर रहेगी वजीर को लिखते वक्त, कि आपने, क्योंकि फिल्म का बैकड्रॉप दिल्ली में भी सेट है? मैं ये एम्फसाइज करना चाहूँगा कि ये फिल्म एक एंटरटेनिंग फिल्म है और वो इन चीज़ों से इतनी जुड़ी नहीं है जितना आप सोच रहे हो, और इस बात पे आप विश्वास कर लीजिए. मैं आपको बहुत नेकी से ये बता रहा हूँ कि ये दोस्ती के बारे में ये फिल्म,
एक अंग्रेजी में वर्ड है मैकगैफिन, तो वो जो एलिमेंट हमने यूज किया है, दैट्स अ मैकगैफिन. इट्स नॉट directly concerned with the film. It's a film of friendship, and I absolutely repeat that. As far as the seed of the film, Vinod will tell you a little more about it. But as I told you, I had the privilege of listening to this idea when I first met him in my life in 1994. So that was 21 years ago. And in 2000, we started writing it. And between 2000 and 2004, we wrote it. At one point, we approached Mr. Bachchan to play this same role in English, and the script was not nearly as good as that time, but he was very kind to us, and so it was a dream. It was a dream to work with him, and subsequently it was beautiful that a thinking actor like Farhan came on board, and also a director. So he had some scripting suggestions. So the script just kept getting richer, and Bijoy's visual expertise came in. This mesmerizing young lady has done absolute wonders. So it's a genre which is not what you're saying. It's exactly what Farhan said. It's a wholesome entertainer. अदिति, अगला सवाल मेरा आपसे है. थैंक गॉड आपने पूछ लिया उनसे. दो पूछिए. मैं काफी खुश थी एक्चुअली, सुन रही थी सबको. ये सभी जितने दिग्गज कलाकार हैं या शख्सियत हैं, इन सभी को आपने देखा होगा. जब इनके साथ काम करते हैं तो किस तरह का, मतलब वो फैन मोमेंट भी था कभी कभी? कभी कभी नहीं. फर्स्ट आई लाइक टू विश एवरीवन अ रियली हैप्पी न्यू ईयर, और आपका न्यू ईयर और खुश बनाने के लिए प्लीज़ आप 8 जनवरी को जाके वज़ीर देखिए. बट मैं ये बोलना चाहूँगी फॉर मी एकदम ये प्रिविलेज था टू बी अराउंड पीपल हु जिनके लिए इतना रिस्पेक्ट होता है. एक blessed feeling, I felt very blessed to just be a part of a project like this, to have been picked for a project like this, to have spent every moment that I spent with Mr. Bachchan, with Farhan, with Vinod sir, Bijoy, Abhijat Joshi, every person associated with this film is really amazing, and for me it was that. And मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जब मुझे लोग पूछते हैं कि कैसा था, मुझे हमेशा लगता है, मुझे एक्चुअली फूलिश लगता है कि मैं मिस्टर बच्चन के बारे में क्या बोलूं, पर मुझे ये भी लगता है कि एक जो पर्सनली वो आपसे कनेक्ट करते हैं, दैट इज़ समथिंग दैट आई विल नेवर फॉरगेट. और उनकी आंखों में जो हमेशा एक चमक होती है, दैट इज़ समथिंग दैट आई विल ऑलवेज कीप विथ मी. एंड पहले तो आपने कभी ये कहा नहीं मुझे. so for me that's what I'd like to say, कि जो भी मैं कहूँ उसके लिए actually words काफ़ी नहीं होंगे to say what I actually feel about being a part of a film like Wazeer. And I feel that for every girl or every actor who wants to be a part of the industry and has dreams, I'd like to tell them that dreams do come true, and I know that they do with this experience. विदुत, हेलो, मेरा सवाल अमित जी. विदुत जी से है. अमित जी, आपके दाहिनी हो जी. जैसा मैं उनकी बात को उधार लूंगा, रचनात्मकता की यही खास बात है कि कौन किसे रच रहा है पता नहीं चलता. जब आप इन नए टैलेंट्स को, इन यंग टैलेंट्स को देखते हैं और जब काम करते हैं और उनका पर्दे पर हुनर सामने आता है, तो किस तरह का, क्योंकि हर दशक में आपने तमाम अदाकारों के साथ काम किया है, तो आपके लिए ये अनुभव कैसा था? मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे अवसर मिलता है इनके साथ काम करने का, और जब भी मैं इन लोगों के साथ काम करता हूँ बहुत ही आश्चर्यजनक हो जाता हूँ, क्योंकि इतना खूबसूरत काम करते हैं ये सब. अपने अंदर बहुत सारी कमियां जो हैं वो दिखने लगती, और मैं उम्मीद करता हूं कि उनसे कुछ सीख सकूंगा, क्योंकि ये जितनी भी नई पीढ़ी है ये इतने टैलेंटेड हैं और इतने वेल प्रिपेयर्ड हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है. अद्भुत इनका एक कलाकृति है इन सब की. और जब भी मैं आजकल के फिल्में देखता हूँ मुझे समझ में नहीं आता कि अपनी पहली या दूसरी फिल्म में इतना बढ़िया काम कैसे कर लेते हैं ये लोग. मैं तो आज भी 45 साल बाद भी सीख ही रहा हूँ, लेकिन वो सब तक लिए तैयार एकदम आते हैं. Okay. मेरा ये सौभाग्य है कि उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिलता है. ओके अमित जी, मेरा सवाल आपसे है. सर, फरहान आपको लक्ष्य फिल्म में डायरेक्ट भी कर चुके हैं, और इस फिल्म में मेरे ख्याल पहली बार आपके साथ कैमरा शेयर कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. ही इज अ बेटर एक्टर और बेटर डायरेक्टर. ये दोनों ही सक्षम है ये. और जब ये डायरेक्टर होते हैं तो डायरेक्टर होते हैं, जब ये कलाकार होते हैं सह कलाकार तो सह कलाकार होते हैं. इनके साथ एक कलाकार के रूप में मैंने काम किया है,
और इनका मैंने रूप एक निर्देशक के रूप में भी देखा है और अब एक सह कलाकार के, तो कहीं ना कहीं होता है कभी कभी कि क्योंकि ये निर्देशक हैं तो कभी कभी कुछ ऐसी खामी या ऐसी कुछ छोटी सी बात ये ढूंढ निकालेंगे किसी शॉट में कि यार अगर इसको ऐसे किया जाए तो कैसा रहेगा, तो वो फिल्म की भलाई हो जाती है उसमें। क्या वजीर के दौरान इस तरह की बात हुई या वाकया पेश आया? हाँ जी, क्या वजीर की मेकिंग के दौरान इस तरह का कुछ वाकया पेश आया जैसे आपने कहा? क्योंकि जैसे कि अभी विनोद कह रहे थे, सब हम लोग मिलजुल करके काम करते हैं, और चाहे वो विजय हो, अभिजात हो, अदिति हो, फरहान हो, विनोद हो, सब अपना अपना दृष्टिकोण देते हैं, कोई बात होती है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि कई बार स्क्रिप्ट को एक तो व्यक्तिगत रूप से पढ़ा गया, विनोद ने आकर के मुझे सुनाया, फिर फरहान को सुनाया, फिर फरहान और मैं अकेले बैठे, फिर उसके बाद पूरा स्टारकास्ट बैठा, कई बार रीडिंग्स हुई इसकी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो कुछ भी आपको कहना सुनना है उस समय कह देना चाहिए, ताकि एक बार सेट पे जाएं तो फिर केवल उसको काम करें, बहस न करें। एक थ्रिलर लगता है, तो क्या उस जॉनर में फिल्म होगी? क्या उस तरह की फिल्मों की याद दिलाएगी? नहीं, मैंने जॉनी गद्दार देखी है, मैंने वो दूसरी फिल्म जो आपने जिक्र किया, हाँ वो मैंने देखी नहीं है, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। लेकिन ये फिल्म बहुत अलग है उस फिल्म से और उस जॉनर से, क्योंकि ये फिल्म एक्चुअली मतलब जो आप देख रहे हैं एक थ्रिलर की फीलिंग आ रही है, और है थोड़ा बहुत मतलब जो थ्रिलर एस्पेक्ट है इसमें, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये फिल्म एक्चुअली एक इमोशनल ड्रामा है, अगर मुझसे आप पूछें, क्योंकि मैं जब मैंने ये कहानी पढ़ी थी तो जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है इस फिल्म में और जो सबसे ज़्यादा आपके साथ रह जाती है, जो यादगार है, वो जो एक इमोशनल थ्रस्ट है इस फिल्म का, जो एक लव स्टोरी है, जो एक ड्रामा है या दोस्तों का, ये चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा याद रहेंगी इस फिल्म को देखने के बाद। तो इसका सिर्फ आपके दिमाग, जो कहते हैं ना एक फिल्म में जो एक स्मार्ट फिल्म बनी है, ये उस तरह की फिल्म नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जो पहले आपके दिल के अंदर जाएगी, और उसके बाद जब आपको लगेगा कि हाँ यार मैं भी अभी इस फिल्म का, इस कहानी का, इस दोस्ती का, इस रिश्ते का एक हिस्सा बन चुका हूँ, फिर उसके बाद एक ऐसा वक्त आएगा जब आपको सोचना पड़ेगा कि यार इनकी मुसीबतें मैं भी ट्राई करता हूँ उनके साथ सॉल्व करने में। तो ऐसा कुछ है। तो ये उस तरह की फिल्म बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही एक मतलब दिल को छूने वाली फिल्म है। Okay, Aditi, it means what Farhan is saying, everyone would relate to the film. कि हाँ कहीं मैं भी ऐसा हूँ या मेरे भी कहीं दोस्त यार ऐसे हों। क्योंकि आई फील कि अगर आप मुझे आपकी ज़िंदगी में कुछ हो रहा है, अगर मैं आपको जानती नहीं तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? अब एज एन एम्पैथेटिक पर्सन में भी पड़ेगा, लेकिन अगर मैं आपकी ज़िंदगी के बारे में जानूँ और आपकी ज़िंदगी किसी तरह मेरे दिल को छू जाए, तो ऑब्वियसली आई विल बी मोर इन्वेस्टेड इन योर स्टोरी। तो एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट जो होती है कैरेक्टर्स के लिए, वो इस कहानी में बहुत है। और आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल से दिस, हमारी आजकल की जो फिल्में हैं कि वो बहुत क्लेवर होती हैं और वो बहुत खट प्लॉट, कूल, टेक्निकली सब कुछ उनमें सॉर्टेड होता है, लेकिन एक एट द एंड ऑफ द फिल्म यू फील अरे मैं रोई नहीं, मेरे को कुछ लगा नहीं, क्या क्यों ऐसे क्यों हुआ? पर आई फील कि आई होप एंड आई थिंक कि इस फिल्म में बहुत ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप इन्वेस्ट हो जाते हैं इन लोगों में, एंड इसलिए आपको जानना है कि क्यों ऐसे हो रहा है, क्या ऐसे हो रहा है, क्या हम उन्हें बचा सकते हैं, क्या हम कुछ चेंज कर सकते हैं। दैट काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज देयर। नहीं, और ये बिल्कुल सही बात है कि जो हिंदी फिल्म है और जो कहते हैं ना, जो एक मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म जो बनती है, वो बिना एक इमोशनल कनेक्शन के वो सक्सीड नहीं हो सकती। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और वो एक चीज़ है इस कहानी में, जो सबसे पहली चीज़ रजिस्टर हुई जब मैंने सुना उनके ज़बानी से ये कहानी जो है और ये स्क्रिप्ट जो है, तो पहली चीज़ मैंने नोटिस किया, यार मुझे अंदर से बहुत कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं जो मुझे नहीं लग रहा था कि पॉसिबल है ऐसे जॉनर में। तो बहुत अच्छी बात है इस कहानी के बारे में। ओके, अमित जी के साथ काम करने का किसी का ख्वाब होता है, सपना होता है, और आप सभी का होता है, किसी का नहीं सर। कोई ऐसा नहीं करना चाहता। फरहान आप कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा अमित जी के साथ? और अमित जी का फिल्म के अंदर होना जी, इट्स अ प्लस पॉइंट ऑफ कोर्स। व्हाट डू यू से? बस यही कहूँगा कि उनकी फ़िल्मों से मतलब मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुआ हूँ, उनके काम से इन्फ्लुएंस हुआ हूँ, उनकी पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस हुआ हूँ। मतलब कुछ हद तक जो मेरा एक फ़ैसला था जो मैंने लिया था कि मुझे फ़िल्मों में कुछ काम करना है, वो उन्हीं की वजह से कुछ हद तक है ये फ़ैसला। तो ये मैं बहुत किस्मत वाला मानता हूँ अपने आप को कि 10-11 साल पहले उनको डायरेक्ट करने का मुझे एक मौका मिला था लक्ष्य में, और अब उनके साथ इस तरीके से एक करीबी से इतना काम करने का मौका मिल रहा है। और बिल्कुल सही कहा आपने कि जितनी पीढ़ी आई हैं
फिल्म में जो भी हो, वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो, कि सब कहते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस रहा है हम पर। तो ऐसी जनरेशन्स मतलब आई हैं जो जिनके लिए उनके साथ एक फिल्म में काम करना बतौर किसी भी रोल में भी काम करना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उनका इतना इन्फ्लुएंस रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे 2 बार उनके साथ काम करने का मौका मिला है अलग अलग रोल्स में, और बहुत सीखने को मिला है उनसे। बहुत एक सिनेमा के बारे में जो एक प्यार है हमारे सिनेमा की ओर, उस सिनेमा का वो इतना बड़ा हिस्सा है, तो उसके लिए मतलब कभी कभी तो लगता है कि यकीन नहीं होता कि उनके साथ एक फ्रेम में बैठे हैं और कुछ बातें हो रही है जो कल ऑडियंस देखेगी पर्दे पे। The soldier that can defeat the king. Good afternoon, everybody. My question is to Mr. Bachchan. Mr. Bachchan here. Sir, I'm here to ask you what everyone here wants to know. Your take on the Maggie Row that's, currently making headlines. Madam, abhi tak I have not received any notice. As soon as I will get it, I will put it up to my lawyers and we will fully cooperate with whatever the law says. I want to also add that, I stopped endorsing Maggie 2 years ago. I don't endorse Maggie anymore now. And that happened 2 years ago, so I haven't been associated with the product. Right, sir. And he's endorsing Wazir at this moment, if you don't know. All right. Thank you. Bachchan sir, you're right. Sorry. Bachchan sir, sorry. Ali from movietalkers.com. Yeah. बच्चन सर आपने लेफ्ट राइट बोल के इतना कंफ्यूज कर दिया। बच्चन साहब, आपने फरहान के साथ लक्स में एज एन एक्टर काम किया था, उसके बाद अभी आप दोनों एक साथ एक्टिंग कर रहे हो, तो फरहान एज एन एक्टर बेटर है कि डायरेक्टर बेटर है? सर, इनमें दोनों खूबियाँ हैं और कलाकार तो हैं ही बहुत खूबसूरत और अच्छे, लेकिन कई बार इनके मन के अंदर जो इनका जो अंदरूनी भावनाएं हैं एज ए निर्देशक, वो कभी कभी बाहर आ जाती थी, तो और कभी कभी हम दोनों के बीच सलाह मशवरा हो जाता था। तो ये जो कहते थे उसको मैं मानता था, क्योंकि उनके अंदर एक निर्देशक है और निर्देशक का मानना बहुत आवश्यक हो जाता है कलाकार के लिए। हेलो, सर, बहुत सारे खेल हैं जो मैं खेलना चाहता हूं और सीखना चाहता हूं। पता नहीं कि अब बढ़ती उम्र में उन्हें खेल पाऊंगा या नहीं, लेकिन मेरा प्रयत्न अभी जारी है और जैसे ही कोई नया खेल सीख लूंगा मैं आपको बताऊंगा। विधु सर, आपके लिए एक सवाल है। विधु सर, यहाँ जी, या विधु जी। वैसे तो ये देखकर ही लग रहा है कि पॉलिटिकल बैकड्रॉप पे है पूरी फिल्म, लेकिन इतना वक्त क्यों लगा स्क्रिप्ट लिखने में? देखिए, ये सवाल का जवाब मैं और राजू पीके में भी दे चुके हैं। हमको 5 साल लगते हैं लिखने के लिए, 4-5 साल लगते हैं। इसीलिए हमारी जो फिल्म है वो एक, मेरे हिसाब से एक सर्टेन लेवल की फिल्म बन पाती है, क्योंकि जल्दबाजी में जो काम होता है, और हम कोई प्रोजेक्ट बनाते नहीं है, हमारे को कोई स्टूडियो चलाना नहीं है, हमारे पास कोई 400 लोग नहीं हैं जिनके हमको हर महीने फीस भरनी है, तो हम अच्छे से वही फिल्म बनाते हैं जिसमें हमको लगे कि ये फिल्म ज़रूर बनानी चाहिए। उसमें वक्त लगता है, और हर फिल्म आप देखिए, अगर पीके में 5 साल लगे ना, ऑलमोस्ट 5 years इट टुक अस, ये 5 साल लगे, उसके पहले भी 3 Idiots या आप परिंदा में जाइए, 40, हर फिल्म में वक्त लगा है। तो ये कोई नई बात नहीं, हम थोड़े लेजी भी हैं, आलसी हैं थोड़ा, ऐसा लगता है। बच्चन जी, आपके लेफ्ट में। बच्चन जी, यहाँ। हाँ जी। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी 42वीं सालगिरह है। तो मैं जानना चाहूंगी कि जया जी ने आपको क्या गिफ्ट दिया या आपने उन्हें क्या गिफ्ट दिया? मेरी सालगिरह नहीं है, आपकी शादी की सालगिरह है 42वीं में। शादी आप शब्द इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, क्षमा चाहूंगी सर। विवाह जयंती है आज हमारी जी। और जी सर, बधाई दे सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन, थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो। पत्नी है नहीं मुंबई में जी, वो विदेश में है, और ठीक 12 बजे रात को हमने उनको बधाई दी। अभी यहाँ आने से पहले फिर हम फेस टाइम पे बात कर रहे थे, वो हमें बधाई कहना चाह रही थी
लेकिन मैंने उनसे कहा कि देखिए देर हो रही है, यहाँ पर सब मीडिया इंतजार कर रहा है, मुझे जाना है, और मैं भाग आया। अब मैं वापस जाकर के फिर बात करूंगा उनसे और आपकी बात जो है उन्हें अवश्य कहूंगा। Amit ji, is that the reason that you are looking handsome today? कहाँ हो तुम? So yeah. Thank you, madam. With your नतमस्तक हूँ आपके सामने, बहुत बड़ी कृपा है आपकी। With your specific fashion styling, that chunni makes you look so handsome, and you give a tough competition to the youth sitting beside you. सर एक और Tell me पिक्चर who has एक जल्दी से एक और पिक्चर बनाइए। आपको किसने ये जिसमें- स्टाइलिंग करवाई बता रहा सर? हूँ। एक जल्दी से पिक्चर बनाइए जिसमें आजकल की जितनी नौजवान हीरोइंस हैं वो मेरे साथ हो, मेरे सामने हो, और इनका उदाहरण लीजिएगा। मैडम ये जया जी की भेंट है, लेकिन आज नहीं, बहुत पहले की। ये खास बंगाल से बनता है, बंगाल में बनता है। और जब हम अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसका नाम था पीकू, उस समय जब वो कलकत्ता आई थी तो उन्होंने मुझे खरीद के दिया था। मैडम जितने वस्त्र के बारे में आपने पूछना अभी पूछ लो, एक एक करके आप पूछेंगी तो मामला बहुत हल्का हो सकता है। घड़ी तक ही बात रहने दीजिए आप प्लीज। Hello, Farhan. Hello, Farhan. Towards your left. Left. Sorry, right. आपने कहा कि बच्चन साहब एक रीज़न है आपका फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए। अगर हम बात करें कि आप उनके साथ फर्स्ट टाइम स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहे थे, तो किस तरह का प्रिपरेशन आपने खुद से की? हमने काफ़ी रीडिंग्स किए एक साथ, और उसके अलावा जो होना है वो इवेंचुअली सेट पे ही होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि पहली बार जब हम शूट कर रहे थे तो एक सीन था, ये इनके घर में जो फिल्म में उनका घर है उसमें हम एक सीन कर रहे थे, चेस बोर्ड बीच में है, एंड इट टुक मी अ गुड, आई वुड से ऑलमोस्ट 1 घंटा या 1.5 घंटा फॉर इट टू सिंक इन प्रॉपरली कि मतलब ये शूटिंग चल रही है, मैं यहाँ बैठा हूँ, अमित अंकल उस तरफ बैठे हैं और हम लोग कुछ रीडिंग्स और रिहर्सल्स कर रहे। इट टुक मी अ वेरी लॉन्ग टाइम टू डू दैट। फॉर्चुनेटली उस सीन में ज़्यादा जो टॉकी पोर्शन है वो उन्हीं का है, तो आई हैव टू जस्ट लुक वेरी ऑस्ट्रक एंड क्वाइट, तो दैट केम वेरी नेचुरली टू मी इन दैट सीन। आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट फाइनली परफॉर्म्ड सीन्स बाय द वे, completely naturally looking awestruck with this man who's giving me some very very important information. अमित सर लेफ्ट में आपके। नहीं, हमारा पहले वर्किंग टाइटल था 2। जब हम शुरू करते हैं कोई भी कहानी सालों साल लिखी जाती तो हम ऐसे 1 2 3 कुछ भी उसका टाइटल रख देते हैं। फिर वो जैसे जैसे कहानी बनती है फिर वो हमको टाइटल समझ में आता है कि इसका ये टाइटल होना चाहिए। हमारी असल में आप मुन्ना भाई MBBS में भी कितने अलग अलग टाइटल थे। जैसे जैसे कहानी बनती है और कलाकार जो हैं उसको परफॉर्म करते हैं और हम एडिटिंग में देखते हैं क्या हो रहा है, इसीलिए हम वक्त लगाते हैं। धीमे से सहज पके सो मीठा होए वाली बात है। तो वो जब फिल्म को हमको लगता है कि अप्रोप्रिएट ये टाइटल है तो हम फिर उसको फाइनल करते हैं। अमित सर आपके ये पहले वर्किंग टाइटल था व्हाट अ स्क्रिप्ट, फिर उसके बाद W को सुपरस्टिशन रख के हमने वजीर। अमित सर लेफ्ट साइड में विकास फ्रॉम न्यूज नेशन, यहाँ लेफ्ट साइड में सर आपके लेफ्ट साइड में सर यहाँ। सर सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको सर, 42वीं शादी की सालगिरह है। और आपसे सवाल करूंगा सर, क्योंकि आपके जो बाएं साइड में बैठे हैं सर वो शादी के साइड इफेक्ट वाले बैठे हैं, तो क्या ये सर एक लाइन होती है कि शादी का लड्डू जो खाता है वो पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता है? तो सर इन 42 सालों में ये लाइन कितनी बार याद रही है? आपकी शादी हो गई क्या? जी सर। कितना मीठा है आपका लड्डू? सर आपसे पूछना है मुझे भाई। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। 42 साल नहीं हुए शादी। हम प्रजातंत्र में रहते हैं, पूछने का अधिकार हमको भी है। सारा लड्डू आप ही खा जाएंगे, हम लोग क्या खाएंगे फिर? यानी आपके लड्डू मीठे हैं, नहीं बोल दीजिए। जी सर बिल्कुल। मेरे भी बहुत मीठे हैं। सर अनुभव थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि आपने ट्विटर पे बहुत सारी बात शेयर की हैं, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी सर अनुभव कैसा था ये पूरा 42 साल का अनुभव? 42 साल विवाह का अनुभव, इसको कौन लाया यार इधर? सर ये बहुत लंबी बात हो जाएगी। Thank you, sir. My question is to Bijoy. Here. Hi. Hi. It's
It's been reported that John and Neil Nitin play cameos in the movie, and is that true? Well, you just saw them. Exactly, and I yeah. was quite surprised that you have, kind of shown them. Well, they both play kind of pivotal roles in the film. I wouldn't want to discuss much about that because the film is, going to be releasing much later. So I would kind of wait to kind of watch out. But they both definitely have it's a special appearance, but still they both have quite a pivotal role in the film. Farhan or your state? Since you've done action movies, but you've not done an out-and-out action movie like you're doing action in this movie. So we also heard that there were professional hires to make you learn how to hold a gun and also if you can share your experience on that. There was a very good action team, for sure. और हाँ मैंने एक्शन काफ़ी डायरेक्ट की है मगर मैंने कभी खुद फिल्म में एक्शन की नहीं है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि वन ऑफ माय फेवरेट जॉनर्स फ्रॉम द टाइम दैट आई वाज अ चाइल्ड वाज एक्शन मूवीज और मैं मतलब घर में घुमा करता था विद एन इमेजिनरी गन and I used to go around corners thinking that there are villains hiding in different places. I was a very filmy child as you can imagine. तो मैं सब करता था और एक दिन मैं अपने मम्मी के रूम की तरफ जा रहा था दरवाज़ा बंद था और मेरे माइंड में ये चल रहा था कि मैं दरवाज़ा खोलूंगा उसके पीछे एक विलन का हेंचमैन टाइप खड़ा होगा और मैं उसे एक सॉक करूंगा मुंह पे और मैंने दरवाज़ा खोला और जोया वाज कमिंग आउट एंड आई पंच जोया इन द फेस तो उसके बाद आई मूव टू रोमांटिक कॉमेडीज फॉर अ बिट बट आई ऑलवेज एंजॉयड एक्शन हाँ और एक बहुत ही प्रोफेशनल टीम थी वहाँ पर जिन्होंने मुझे सिखाया बेसिक्स ऑफ एक्शन बट आई थिंक या एंड आई हैड अ वंडरफुल टाइम डूइंग इट क्योंकि मुझे पहले कभी मौका इन फिल्म मिला नहीं था एक्शन करने के लिए मैं आपको अपना एडिटिंग में अनुभव बताऊंगा क्योंकि मैं एज इट इज मेरी जनरल नॉलेज बहुत कम है तो जब ये फिल्म फर्स्ट हाफ राहुल नंदा जिन्होंने पोस्टर बनाया है उन्होंने देखी हम एडिट में और प्रभात यहाँ बैठे हैं तो इन्होंने कहा कि ये क्या फर्स्ट टाइम इसने एक्शन हीरो किया है फरहान ने तो आई कुडंट बिलीव इट एक्चुअली आई कॉल्ड फरहान आई स्टिल कांट बिलीव कि दिस इज हिज फर्स्ट टाइम एक्शन परफॉर्मेंस बिकॉज ही इज सो गुड with his gun and with his movement, his body language, that he looks like as if, he is an action hero. So my compliments to him. Maybe वो जो sock मारा था जोया को वो help कर गया, लेकिन he has done a great job. Amit sir, you're on your left. You're. Okay. Recently, Deepika gave an interview saying that it was a mistake of her not calling you at the success bash, and she also said कि उन्होंने आपको बहुत text और message किया तो क्या हम मान ले कि आपने उनको finally माफ कर दिया? अरे मैडम छोड़ दीजिए जो बीत गई सब बात गई छोड़ दीजिए जाने दीजिए एक कविता सुना देता हूँ मैं बाबूजी की इस पर प्लीज सुनाइए सर प्लीज जो बीत गई सो बात गई जीवन में एक सितारा था माना वो बेहद प्यारा था वो डूब गया तो डूब गया अंबर के आनंद को देखो कितने इसके तारे टूटे कितने इसके प्यारे छूटे जो छूट गए फिर कहां मिले पर पूछो टूटे तारों का कब अंबर शोक मनाता है जो बीत गई सो बात गई वाह हाँ वक्त मिलता है इतना हम लोगों के पास कि आप सबके जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसके लिए हम उसका उत्तर दें विदु सर ज्यादा पूछेंगे तो एक और कविता सुना देंगे आपको पूछिए प्लीज प्लीज विदु जी एक सवाल आपके लिए ये इधर भाव जी बिजॉय बहुत अच्छे उम्दा डायरेक्टर हैं लेकिन इस तरह का जो सब्जेक्ट है ये आपकी खासियत रही है तो आपने क्यों नहीं ये डायरेक्ट करना चाहा जब इतना लिखने में वक्त लगाया तो क्योंकि मैं ऑनेस्टली समझता हूं कि बिजॉय ने मेरे से बेटर डायरेक्ट की है उसने बहुत अच्छी डायरेक्ट की है फिल्म और मैं राजू के साथ काम कर करके थोड़ा लेजी हो गया हूं मैं चाहता हूं ये लोग जाके डायरेक्ट करें मैं एडिटिंग रूम में बैठ के भाषण झाड़ूं तो मेरा रोल बिल्कुल अच्छा चल रहा है पर सच अगर हम माने तो देयर आर फ्यू सीन्स दैट आई हैव सीन इन द फिल्म that I couldn't have done half as good as Bijoy. It's my compliments to him one more time, really. Bijoy, here, right here. On your right. Yeah. Hi. Bijoy, I would like to know, you have stalwarts like Mr. Bachchan working on this film, and Farhan himself is an accomplished director. Vidhu is a fantastic director. What were your challenges of directing a film like this with a cast
you know, which is so accomplished in their own way? And was it intimidating for you as a young filmmaker in the beginning? And how did you handle the situation? I had to completely block that feeling out because, like you said, all of them are like, you know, so accomplished in their own way, and it is definitely very daunting and intimidating to work with such people like that. But so I had to keep that out completely, and the fact that we actually prepped for the film for a long time. We had a lot of readings, so in that process itself, they just made me feel so they didn't, at no point did they ever make me feel that, okay, this is like a filmmaker who's just making his third film. Nothing like that. I mean, all of them, you know, treated me the same way that they would like any other director. So, and I really appreciate that. And having said that, like I said, I had to keep that out completely. I had to forget the fact that I'm directing Mr. Bachchan, and forget the fact that I'm directing another director that is Farhan here, right here. So because ultimately I just had to make the characters work. I had to do justice to the script that Mr. Chopra and Abhijat had written for years. I mean, my biggest challenge for me was that that it should definitely raise the bar in terms of how they saw the film, and I wanted to make sure that I gave them a good film. Mr. Bachchan, पीछे सवाल थोड़ा यहाँ से थोड़ा वजीर से थोड़ा अलग है, सब पीछे एकदम पीछे 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 हैं सर। सर आज सुबह से ही खबरें पीछे सर, आपके पीछे नहीं, कैमरास के पीछे। सर आज सुबह ही खबरें आई हैं कि बोफोर्स मामले में आपके बयान जो हैं वो उसको लेकर खबरें आई हैं, क्या कहना चाहेंगे सर उसके बारे में? कहाँ हैं आप पहले तो सर ये पीछे ये सर। क्या मैंने सुना नहीं, क्या पूछा आपने? सर बोफोर्स मामले में जो आपका बयान था, मेरा क्या बयान था? सर यही कि आप अपने पिता के घर पर थे, जगदीश टाइटलर कहाँ थे वो आपको पता नहीं था, तो सर उसको लेकर जो बयान आया है आपका दिया गया, मैंने समझ नहीं आ रहा क्या कहा आपने, हमने देखा नहीं उसको अभी तक, क्षमा चाहता हूँ, बताइए क्या था बयान? हाँ सर, न्यूज़ में इस तरह की खबरें हैं सुबह से कि जो आपकी जो कॉपी जो सीबीआई के पास आपने सबमिट किया है, जो बयान सबमिट किया है वो फाइनली दे दिया गया है, जिसमें कि आपने कहा था कि उस वक्त आप पिता के घर पर थे और जगदीश टाइटलर कहाँ थे इसकी आपको जानकारी नहीं है। ये बोफोर्स के मामले में है? हाँ जी सर। मैं अपने पिता के घर पे था। 84 राइट्स, आई एम सॉरी, 84 राइट्स सर। हाँ नहीं, मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। 84 राइट्स की बात। बहुत सारे ऐसे बयान आ रहे हैं। हम उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ थे, तो मैंने कहा मैं अपने बाबूजी के घर पे था। मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं। अब पता नहीं कौन से बयान की बात कर रही हैं। हाँ, वो लोग आए थे मुझसे पूछने कि आप कहाँ थे और ये बाकी लोग कौन थे आपके इर्द गिर्द। मैंने बताया मुझको याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है, जितना मुझको याद था मैंने बता दिया उनको। अब वही दिलवाएंगे। हमारे में तो इतने औकात है नहीं, और जिस संबंध में हमने वो बात की थी वो अलग था। I just consider myself very fortunate to be still getting some work, and very fortunate to have the opportunity to work with this new generation, whom I find unbelievably talented, very progressive in their thought and thinking, and it's a great joy. The average age on my sets is about 25-30 years, and I'm 73, so I just wonder whether this is my position or place or not, but it's just a wonderful experience. I'm very fortunate really to be still getting some work, and I would like to continue working, yes. Sorry? Well, that's for you to say and for me to keep quiet on. आपके पास फुर्सत है क्या? मैडम, आप बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चंस पूछ रही हैं सुबह से। अभी तक तो आप मेरे वस्त्र के ऊपर पीछे पड़ी हुई थी, अब हमारी कुंडली ऊपर आ गई हैं आप।
क्या मालूम किसने क्या लिखा है, और जिसने लिखा होगा उनसे जाके पूछिए आप। राजू सर, Who are you talking to? Farhan. In excuse me, in my personal opinion, no, I don't think that they are. Everyone, when we sign up a contract with any company, there is a certain clause or clauses within that contract in which the company assures you that all the research that they have done, all the information that is out in public domain is accurate information, is based on fact. They are not lying to the public. They're not lying about nutritional values. They're not lying about the contents of what goes into the making of anything. And this is all backed by research that they have done. And you have to believe them, because I mean, we are not scientists to say that we'll take it to a lab and test it ourselves. We won't know what to do with it. Like, for example, I mean, just taking what's happening with Maggie right now. Maybe a year and a half ago, if somebody told you there's something wrong with Maggie, you wouldn't believe it. You know what I mean? The fact is, everyone thought it was well, everyone was eating it, people were selling it, and you trusted the brand. Similarly, we trust the people when they give us certain information. We have to trust them because they know better than us. And then you are indemnified by them that tomorrow if there's anything, of course, as consumers, you can take up a case against them if there is a problem. You can. But you cannot hold the person who was endorsing that brand responsible, because then when you show that advertisement on your channel, are you responsible for bringing it out to the people? Is a shopkeeper that's selling it to someone responsible? Where does it end? You know, there is no end to it. And of course, I completely agree with you that ambassadors, people have to be responsible towards what they are signing up for. That I can appreciate, that you don't want to sign up for something that already is dubious, you know, that may have dubious claims. I can understand, but these are brands that you've trusted for years and years and years. You know, so to say that, oh, I can't sign on with a brand that people have trusted for the last 2 decades, I mean, I don't know how that would be possible. आपका सुना ही नहीं दे रहा, किसको पूछ रही? Sorry, मुझे पूछ रही हैं कि बच्चन साहब को पूछ रही? हाँ जी. Yeah. My matter is now sub judice, so I won't be able to say anything. But all I can say is that as soon as I get the notice, my lawyers will look through it. We will follow the law of the land, and they shall have my fullest cooperation in it. I have one thing to add, because and that should end this Maggie discussion, is that I personally agree with what Farhan said, but there's one thing he didn't say which I am saying, that there's also something like in our country, there's a quality control, there's an ISI, there is whole government machinery that has to check the quality of the product that people are consuming. I think we should also question that agency. It's their job to protect us also. With that, let's put a full stop to Maggie and go to Wazir. Thank you. Bijoy, hi, Bijoy. Hi, Bijoy. Yeah. हाँ, Hi. अरे वो बिजॉय कर रही हैं आप, एक मिनट. कोई बिजॉय, मिस्टर बिजॉय कर रहा था. कहाँ गए? हाँ. पूछ लीजिए सवाल, टाइम यही है. ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें 3 बड़े-बड़े डायरेक्टर्स हैं जो इस प्रोजेक्ट के, चाहे वो एक्टर हो, राइटर हो या फिर एडिटर हो. कहीं आपको ऐसा लगा कि इंटरफेरेंस था इन तीनों का? अगर ऐसा मैं सोचता तो फिर मैं यहाँ पे नहीं होता. I think it has it's been a great learning curve for me as a filmmaker, because the first time I'm working on someone else's script, and it's been a great collaborative effort so far, and I'm enjoying this process. It's been something, like I said, these are filmmakers. I mean, Mr. Chopra and Bachchan sir and Farhan, these are people like I love their work. So the very fact that I got an opportunity to kind of interact with them, work with them on a project itself is a great privilege. So I only look at it as a part of a learning curve. Mr. Bachchan, आपसे सवाल है मेरा. यहाँ आपके here. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 21st योगा डे के लिए आपको इनवाइट किया है और शिल्पा शेट्टी को, तो क्या आप जाएंगे दिल्ली? और योगा के लिए मायने क्या हैं आपके? क्या आप योगा करते हैं? लोगों को कैसे इंस्पायर करेंगे, कुछ बताएंगे आप?
जी, मैंने अभी तक वो निमंत्रण देखा नहीं है। जो निमंत्रण मेरे पास आया है वो NFDC से आया है और उन्होंने कहा है कि ऐसे एक योगा दिवस जो है वो सरकार की तरफ से मनाया जा रहा है और क्या आप एक वीडियो बाइट दे सकते हैं। और जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होगी मैं जा कर के वो वीडियो बाइट देने वाला हूँ, केवल बताने के लिए कि ये योगा दिवस है और योगा से कैसे स्वास्थ्य और शरीर को फ़ायदा हो सकता है। और हाँ, मैं सुबह सुबह थोड़ा बहुत प्राणायाम वगैरह कर लेता हूँ। Hello. जी, ये Yeah, I was going to thank you very much. Honestly, thank you because First person who asked हाँ, about पहला शुक्र है आप वजीर पे आए हैं, बड़ी मेहरबानी है आप। नहीं तो पता नहीं हम योगा और कपड़े और घड़ियों और कुर्ते और पजामे से कहाँ कहाँ जाने वाले थे। थैंक यू सो मच। कहानी के अंतर्गत ऐसी एक अवस्था आ जाती है जहाँ मेरी टांगें नहीं हैं और पूरी फिल्म में मुझे जितना भी काम मिला है वो कुर्सी के ऊपर है, एक व्हील चेयर के ऊपर। दोनों मेरी टांगें गायब हैं। जब भी मैंने विनोद के साथ काम किया है उनमें एक खासियत रहती है कि वो बहुत बारीकी से हर एक पहलू को, हर एक विषय को लेते हैं और जब तक उनको संतुष्टि नहीं होती तब तक वो लगे रहते हैं उसमें। तो जब ये कुर्सी की बात आई तो मुझे लगा ठीक है, व्हील चेयर है, उस पर जाके बैठ जाएंगे और काम करेंगे। लेकिन 3-4 महीने पहले से ये तरह तरह के विभिन्न प्रकार की कुर्सियां जो हैं वो मेरे सामने प्रकट करते थे और कहते थे इस पे बैठो, इसको आगे चलाओ, पीछे चलाओ, दाईं तरफ लो, बाईं तरफ लो, घूम जाओ। बहुत सारा इसमें उन्होंने अपना समय बिताया और अंत में जाकर के एक कुर्सी चुनी गई जिसे आप देखेंगे फिल्म में। क्योंकि हमारी टांगें हैं भाग्यवश, इसलिए बहुत सारा विजुअल VFX कहते हैं शायद उसे, या उसके ज़रिए उसको छिपाना पड़ता है। और तरकीब ये होती है कि यहाँ से यहाँ तक एक काला मोज़ा पहनना पड़ता है, उसके ऊपर ऐसे सफ़ेद रंग के क्रॉसेस बने होते हैं जो कि VFX वाले उसे देखते हैं। यहाँ पर पजामा जो या पैंट हो उसकी गांठ बांध देते हैं ताकि लगे कि ये एक स्टंप है और उसके बाद वो VFX में यहाँ से यहाँ तक का जितना पोर्शन है वो गायब कर देते हैं। शूटिंग के दौरान मुझे तो वैसे ही करना पड़ा। तो हमारे एक बहुत ही सक्रिय असिस्टेंट हैं, कहाँ गए, ये हर्षित, इनका काम था कि मेरे दोनों टांगों को वो बांध के रखें। क्योंकि क्या है कि अगर ये टुंडा है एक तरह से, ये हिलना नहीं चाहिए और आमतौर पर जिसके पूरे पाँव होते हैं ना, वो जब बात करते हैं या चलते हैं या कुर्सी भी चलाते हैं तो ये इसका जोर लग जाता है ताकि ये ना हिले, क्योंकि अगर ये हिलेगा तो टुंडा भी हिलेगा और वो अपने आप नहीं हिल सकता है जो कटा हुआ पाँव है। तो इनकी ये नौकरी लगी हुई थी कि हमारा पाँव जो है वो बांध देते थे। इस तरह हमने उसमें काम किया। कई ऐसे दृश्य थे जहाँ पर मुझे लेट करके काम करना था या फिल्माना था, तो उसमें एक अलग तरह का पलंग बनता था जिसमें अगर मैं बिस्तर पे यूं बैठा हूँ बिस्तर के ऊपर तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा छेद कर दिया जाता था जिसके अंदर मेरी टांग चली जाती थी और ऊपर से फिर कंबल रजाई वगैरह ओढ़ लेते थे। इस तरह करके हमें काम करना पड़ा। मेरा सवाल है राजकुमार हिरानी से, जाकिर सिसोदिया फरमा। एक मैं इनको बता दूं ये कि हमारा जो पहला शेड्यूल था 10 दिन का वो हमने कैंसिल किया और फिर मैं ये कहूँगा कि सब लोग बैठ के रिहर्सल एक टेबल पे, पहले दिन तो हमने होटल में की, दूसरे दिन से अमित जी ने अपने घर में बुला लिया, तो हम सब लोग इनके घर में एक हफ्ता बैठे रहे अक्रॉस द टेबल, फरहान, मैं, बिजय, सब लोग, और पूरी फिल्म की रीडिंग हुई। और ये जो कुर्सी की बात कर रहे हैं वो इसलिए था कि जब पहली बार ये फिल्म में एक्टिंग करें तो ये कुर्सी ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये लगे कि बरसों से हैं। इसके लिए ये एक्चुअली 3 महीने तक वो कुर्सियाँ इनके घर पे रही और ये ऐसे उस पर बैठ के बहुत ये ह्यूमिलिटी से बात करते हैं। मैं इनकी तारीफ करना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली इन्होंने 2-3 महीने उसको ऐसे चलाया कि जब फिल्म में आप देखेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि कोई कलाकार उसको चला रहा है, ऐसा लगेगा कि जो किरदार है वही उस कुर्सी पे बैठा है और वो चला रहा है। ताली बज रही, जोर से बजाइए। Raju sir, on your right. Hi. Now that you're done with PK and PK has been appreciated a lot in China, what next? What's happening on Sanjay Dutt's biopic?
Actually, before I answer that, let me also say one thing publicly, since everybody's been saying many things publicly. This is actually the first time I'm sitting with Mr. Bachchan. We've done many press conferences here, but I want to say I've grown up, completely grown up trying to be like him when I was in school, would speak like him, would go to a particular tailor to make shirts, the kind of shirts he used to wear. Speak like him. Mom used to get very irritated because I would constantly be doing that. And I've also grown up on Babuji's poems. So whenever he says that, I cannot tell the joy I actually get. अभी उन्होंने शुरू किया, मुझे लग रहा था और लोग सवाल पूछें तो 2-4 और कविताएं सुनने को मिल जाएं. एक बार उन्होंने आके घर पे काफी अरसा बिताया था और कई कविताएं सुनाई थी जो that's a precious possession I still have, and there's a recording I have and I keep playing it once a month at night alone and keep hearing those poems. So it's a complete joy to be here. I say it with all my heart actually. It's a complete joy to be sitting here. And दूसरे सवाल का जवाब बहुत जो आपने सवाल पूछा था ये है कि संजू के बायोपिक काम हो रहा है, स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और अगले साल उसे हम शुरू करेंगे. Now that you shared such a lovely incident about Amitabh ji, any plans of working with him in future, or you plan? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है. देवी जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. अमित सर, आपके सामने विकास फ्रॉम न्यूज़ नेशन. सबसे पहले तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं सर आप सभी को. और हर साल सर हम लोग देखते हैं जब भी मूवी आपकी आती है कुछ अलग हम लोगों को दिखाई देता है. इतने वर्ष बीत गए सर, इतने साल बीत गए. कितना चैलेंजिंग जॉब जो है सर, जो अब खुद जब पर्दे पर देखते हैं अपनी फिल्म को, कौन सा ऐसा लगता है सर इन गए वर्षों में कि सबसे चैलेंजिंग अभी तक का जो किरदार आपने निभाया है स्क्रीन पर, वो कौन सा होगा सर? सभी चैलेंजिंग है हमारे लिए. सर सबसे एक होता है सबसे तुरंत जहन में जो आता है, अंतर नहीं कर सकता मैं. इस फिल्म को लेकर अगर बात करें तो सर, क्योंकि इसमें तो बिल्कुल अलग ही इस तरीके का शायद पहले हम लोगों ने देखा नहीं. जब कलाकार हमारी उम्र तक पहुंचता है तो इसी तरह के रोल मिलते हैं. अब इनकी तरह तो मिलेगा नहीं, तो जो मिलता है उसको स्वीकार कर लेते हैं. हेलो, इनकी एक बात इन्होंने कही नहीं जो मैं कहना चाहूंगा कि ये फिल्म में इनकी लेग्स नहीं है, तो इन्होंने सारी फिल्म में वो बिल्कुल हिलने नहीं दिया लेग्स को. बहुत तकलीफ से गुजरे हैं ये, इसके लिए आपका जो सवाल था वो इनको थोड़ा लगा कि मगर बहुत मुश्किल से ये गुजरे टू एक्चुअली परफॉर्म. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म अ पर्सन हु हैज नो लेग्स और आपकी हैं लेग्स और आप प्रिटेंड कर रहे हैं या एक्ट कर रहे हैं कि है नहीं. एंड व्हेन यू विल सी द फिल्म यू विल सी व्हाट एन इनक्रेडिबल जॉब ही हैज डन. थैंक यू अगेन सर. हेलो, ओवर हियर. अमित जी, स्ट्रेट राइट. पूछ रहे थे आप, कुछ पूछ रहे थे. अमित जी, सवाल ये है कि आप फिल्म देख चुके हैं आप, तो मैं जानना चाहूँगा कि जरा कुछ विस्तार से बताएंगे कि फिल्म कैसी होगी और जो फरहान अख्तर हैं, अदिति राव हैदरी हैं, उनका काम कैसा लगा पर्दे पर देख के आपको, और आपके कुछ किरदार के बारे में अगर आप हमें बता सकें तो. जी, जैसा कि विनोद ने भी कहा, मेरा किरदार है एक कश्मीरी पंडित जो कि दिल्ली में रह रहा है. उनका नाम है ओमकार नाथ धर. और किन्हीं परिस्थितियों की वजह से, एक दुर्घटना की वजह से उनकी टांगें कट जाती हैं और इनकी मुलाकात होती है, या कहा जाए कि ये दो ऐसे शख्स हैं इस फिल्म में जिनकी जो परिस्थितियां हैं वो एक जैसी हैं, और किस तरह ये दोनों शख्स मिलते हैं, लेकिन जो वो समाधान ढूंढ रहे हैं और जो मैं समाधान ढूंढ रहा हूँ वो एक है, और किस तरह ये दोनों मिल करके उस चरम सीमा तक पहुंचते हैं, ये कहानी है हमारी. अमित जी, कल जया जी ने भी फिल्म देखी, तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि उनकी तरफ से क्या रिएक्शन था, क्योंकि आजकल उन्हें कोई फिल्में जल्दी पसंद नहीं आती हैं, तो आप कुछ नहीं, फिर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा भाई साहब. कल जया जी ने भी कल ये फिल्म देखी. हाँ जी. आप से कुछ बातें हुई या उनका कुछ रिएक्शन था? भाई साहब, मेरी पत्नी है, बातचीत तो होगी ही. फिल्म के बारे में कुछ बातें हुई, वजीर फिल्म के बारे में कहना क्या चाह रहे हैं? आपका किरदार उनको कैसा लगा, क्योंकि आजकल उन्हें कोई फिल्में पसंद नहीं आती है जल्दी. जी, वो एक बार नहीं, वो 2 बार देखने गई है. हेलो, ये बात वैसे मैं आपको अंडरलाइन करना चाह रहा हूं. जब वो पहली बार देखने गई तो हम लोग घबरा रहे थे, जब वो दूसरी बार देखने गई तो हम लोग शैंपेन पी रहे थे. ऐसा हुआ नहीं है कि 3 दिन में उन्होंने 2 बार फिल्म देखी हो. अमित जी,
विधु विनोद चोपड़ा जी से आपका बहुत लंबा एसोसिएशन रहा है, तो वो एज अ प्रोड्यूसर आपको ज्यादा भाई, डायरेक्टर या फिर राइटर? पहले तो ये हमारे मित्र बने और उसके बाद जब ये इंस्टीट्यूट से निकले थे तो इन्होंने एक फिल्म बनाई थी, उस समय इन्होंने मुझे दिखाई और मैंने इनसे कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहूँगा। 40-45 वर्ष लग गए, उसके बाद इन्होंने मुझे काम दिया है। और एज ए प्रोड्यूसर, एक निर्देशक और निर्माता के तौर से तो इनकी खूबियाँ आपके सामने हैं, कई इनकी फिल्में आपने देखी हुई हैं। लेकिन इनके साथ जब मैं पहली बार काम करने जा रहा था तो इनके साथ एक महिला थी जिन्होंने काम किया हुआ था फिल्म में, अभिनेत्री। उन्होंने कहा आप इनके साथ काम करने जा रहे हैं। एक्चुअली 2 महिलाएं थी जिन्होंने मुझे चेतावनी दी। एक महिला ने कहा कि आप जा रहे हैं वहाँ काम करने इनके साथ, इससे बेहतर प्रोड्यूसर आपको नहीं मिलेगा। वो आपकी इतनी देखरेख करेंगे, इतना ख्याल रखेंगे आपका। और दूसरी महिला ने कहा कि आप जा रहे हैं, कब जा रहे हैं आप? मैंने कहा जी मैं कल जा रहा हूँ। ठीक है, परसों आपसे मैं वापस मिलूंगी क्योंकि आप परसों वापस आ जाएंगे। ये मत पूछिए कि वो महिलाएं कौन हैं। Hi, I am from the Bus Diary. मुझे अब भी याद है जब पहली बार ये आए तो सूटकेस 2 ही थे, तो मैंने इनको बोला सर 1-2 महीने की शूटिंग है। कहते नहीं भैया, मुझे तो बोला कि हफ्ते भर में वापस चला जाऊंगा, बाकी सामान अगले हफ्ते आएगा। Hi, I am from the Bus Diary. To your left. अमित जी, आपसे एक सवाल पूछना था, आपके लेफ्ट में। You have worked with all the actors from the Angry Young Man time to today, from Shahrukh Khan to Farhan. आमिर खान के साथ काम नहीं किया, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? विनोद चोपड़ा फिल्म्स है, आप दोनों को साथ कब लाएंगे? ये बताएं हमको क्या? सर से भी सवाल है। हम बताएंगे, जब वक्त आएगा तो जरूर बताएंगे। एक लंबू जी टिंगू जी हो जाएगा फिर से। यानी 45 साल में आपको सिर्फ लंबू जी टिंगू जी याद रहा है? अरे आपकी पुरानी फिल्में सारी याद हैं, वही तो। Hi, this is Sohail from Glamsham. It was your right. A very happy new year to all of you all. साल की सबसे पहली फिल्म और सबसे बड़ी फिल्म कही जा सकती है, उसके लिए थोड़ा प्रेशर है एक्चुअली कि people are looking forward. And what was the reason to show like a large portion of the film actually? You know, what was it? देखिए आजकल क्या है कि जो फिल्म मार्केटिंग हो गई है वो मॉल में जाके नाचना, अलग अलग शोज पे जाके नाचना हो गई है। क्योंकि अगर आप नाचेंगे नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चलता आपकी फिल्म रिलीज हो रही है। अब हम जहां से हैं हमको ये बहुत अजीब लगता है कि हम बच्चन साहब से कहेंगे भैया मॉल में जाके नाच लो, हमसे नहीं होता। तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि जो हमारा काम है वो हम दिखा रहे हैं आपको। कल हम पहली बार, शायद ऐसा होता नहीं इंडस्ट्री में, कि जो प्रोग्रामर्स हैं 60-70 जो पूरे हिंदुस्तान में सिनेमा चलाते हैं, उनको हमने कहा ये आप देख लीजिए फिल्म। तो कुछ लोग तो अचंभे में आके पूछ रहे कितने मिनट दिखा रहे हैं। हम बोले सर हम पूरी फिल्म दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए, अच्छी लगेगी तो बहुत अच्छा है, नहीं लगेगी तो भी हमने तो अपनी पूरी मेहनत की है। तो हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम और तो कुछ कर नहीं पा रहे ना दोस्त। तो ये बेहतर है कि हम अपना काम आपके सामने रखें। जितने लोग इंटरव्यू करने आए हैं हमारे ऑफिस में, फरहान को, अमित जी को, अदिति को, बिजॉय को, सबको हमने पहले बोला 15 मिनट फिल्म देखिए, 20 मिनट, तो आपको पता तो चले कि फिल्म है क्या। तो ये सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप उसके बारे में बोलें आगे सर ये एक साइन है कि like you are very confident about the film also in fact. सर वो तो हम मुन्ना भाई हैं, पैदा ही हुए हैं तब फुल कॉन्फिडेंस में ही चलते हैं। Hi sir, Vidhu sir over here towards your left. So you know, with just 7 days left for the release, what sort of release are you planning to give to the film in India and overseas as far as the screen count and everything is concerned? Can you say that again? We are looking at, actually Reliance that's releasing the film does that more than me. I am a producer who is more creative producer than actually looking at how much. I mean, I still don't know how much money we made in China on PK. I was asking somebody, yaar, kitne paise bane? So that actually Reliance will be able to answer, but it's a pretty big release. Thank you, sir. फरहान जी, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन आपसे है। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। सर, अमित जी से आप जब यू आर डूइंग दिस मूवी, तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? जैसे अमित जी का डायलॉग था दीवार में, मेरे पास माँ है, तो क्या आपका डायलॉग होगा कि शुरुआत नए साल की, मेरे साथ अमिताभ जी हैं?
मेरा ये मानना है कि इनके फिल्म इंडस्ट्री के आने के बाद जितने भी लोग आए हैं उन सब ने बहुत ने ज़्यादा हद तक, कुछ ने कम हद तक, जो भी हो, प्रेरणा ली है इनसे, इंस्पिरेशन ली है इनसे, इनकी वजह से ये सोचा है कि मुझे भी फिल्मों में काम करना है, कुछ ढंग का काम करना है, ये सारी चीज़ें हैं. आई एम वन ऑफ दैट जनरेशन, आई थिंक ऑल ऑफ अस आर. सो टू बी वर्किंग विथ हिम, इनके साथ काम करना इज़ रियली अ ब्लेसिंग. You know, apart from the fact that I have great admiration for his work and love for him as a person, just to see him working up close and personal, to be able to share that experience, something that he loves doing, which is acting in films, to be in films is something I love doing too. So to be able to share that with somebody who you've admired all your life is a very, very special. और अगर एक किरदार का नाम ओमकार नाथ धर है, मैं भी कश्मीर से हूँ, तो जरूरी नहीं है कि हर किरदार के नाम से ही वो पॉलिटिसाइज हो जाए. कुछ लोगों का नाम होता है यार, पंडित होते हैं, ओमकार नाथ धर उनकी लेग नहीं होती, एक्सीडेंट में हो जाता है. तो ये इट्स लाइक ही सेड, इट्स अ स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स एंड उनकी जिंदगी पे क्या गुजरता है. क्या आपको लगता है कि ये ऑस्कर की नेक्स्ट एंट्री होगी? फिल्म ऑस्कर्स के लिए ये नेक्स्ट एंट्री होगी? देखिए, मैं आपको एक बात क्लियरली बताना चाह रहा हूँ. जब मुझे कोई पीके में कहता था कि 300 करोड़ करेंगे, 400 करेंगे, मैं बिल्कुल उस बात में बिल्कुल विश्वास नहीं करता. मैं किस बात में विश्वास करता हूं कि हमने ये फिल्म 1 साल एडिट की है. हमने पीके जून से 6 महीना डिले कर दी थी फिल्म, क्योंकि हमको लगा कि इस पे और काम है. हम आपको एक बात बता सकते हैं कि ऐसी फिल्म इस जॉनर में आपने नहीं देखी होगी. ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं. ये कहां जाएगी, क्या होगा, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है. हमारा सिर्फ एक ही काम है और सबका यह कि हम आपको अपना बेस्ट काम करके दिखाएं, जो हमने कर दिया. उसके बाद वो आपको अच्छा लगे, ऑस्कर में जाए, मून के ऊपर कल को चले और नहीं चले, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है. वैन गॉग जैसे पेंटर की एक पेंटिंग जिंदगी भर नहीं बिकी थी. जब मुझे लोग बोलते हैं हिट एंड फ्लॉप, मैं यही सोचता हूं. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर्स, उनकी एक पेंटिंग नहीं बिकी. तो क्या मालूम कि वैन गॉग ग्रेट पेंटर नहीं थे. तो ये जो एप्रिसिएशन आपकी जो है उसका हमको बहुत ये है. लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम नन ऑफ अस आर सिटिंग हियर थिंकिंग अब हमको ये, वो हमारे जहन में है ही नहीं बात. धन्यवाद. बच्चन सर, शिवांगी हियर फ्रॉम लाइव इंडिया. मेरा सवाल आपसे है कि हाल ही में एक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने बॉलीवुड की एक बड़ी अभिनेत्री आशा पारेख जी पे ये इल्जाम लगाया है कि उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था और वो पद्म भूषण अवार्ड के लिए उनके घर 12 माले सीढ़ियां चढ़कर गई थी, जो उन्हें बहुत खराब लगा था. तो इस पर आप इंडस्ट्री से हैं सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपने उनके साथ भी काम किया है सर. आशा पारेख जी गई जी, आशा पारेख जी लिफ्ट बंद था और वो 12 माले सीढ़ियां चढ़कर गई थी, उनसे ये कहने कि पद्मश्री नहीं, मुझे पद्म भूषण मिलना चाहिए जी. तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से छवि खराब करने के लिए इस तरह मुझे लगता है कि वो सीढ़ियां चढ़ के गई और